Hello friends, how are you? Welcome to the video on the topic of pelvic inflammatory disease. This is the first video in this series and we'll be discussing this topic in 3 or 4 videos that will follow. So now what is pelvic inflammatory disease? क्या होता है pelvic inflammatory disease? It is the inflammation of the upper genital tract in a woman, obviously in a woman. So pelvic inflammatory disease is the inflammation of upper genital tract. What is the meaning of upper genital tract? It is fallopian tubes as well as the ovaries. Because the infective organism is either coming from vagina upwards or it may be blood borne. So usually it is bilateral. So what is important? PID, it is mostly bilateral involvement of both the fallopian tubes as well as both the ovaries. It may be possible that inflammation or infection is more at one side than other, but it is usually bilateral. One side may be more than the other. There is a exception for this. हालांकि ये बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी का, बट एक कंडीशन है जहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि इन विच कंडीशन आपका बायलैटरल फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी आर इन्वॉल्व, बट इन केस वन कंडीशन जहाँ पे केवल और केवल ओवरी इन्वॉल्व होती हैं, नॉट द फेलोपियन ट्यूब, इट इज मम्स, वेयर ओनली ओवरी is involved and fallopian tubes are spared. Otherwise pelvic inflammatory disease में आपका both the fallopian tube and ovaries, they both are involved and usually it is always a bilateral involvement. Now coming to etiology, सबसे पहले तो we will discuss what are the factors that prevent pelvic inflammatory disease. और अगर हमने ये जान लिया कि क्या ऐसी कंडीशन होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपके इसको प्रिवेंट करती हैं, तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू डिस्कस कि व्हाट कॉजेज PID. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो है आपका व्हाट इज द वजाइना, व्हाट आर द वजाइनल फैक्टर्स दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन? pH इट इज एसिडिक pH होता है, ठीक है. नाउ कमिंग टू सर्विक्स, देयर इज अ म्यूकस प्लग which prevent the upward movement and also it is alkaline. So पहले आपका एसिडिक pH मिल गया उनको, देन उनको हाईली alkaline मीडियम मिल गया. So these are the two things that prevent the upward movement of the pathogenic organism. ठीक. Now when are these conditions breached? ये जो प्रोटेक्टिव आपका फंक्शन है, ये कब खराब होगा? तभी आपका वो जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, इट कैन असेंड अपवर्ड. वन मोर थिंग, इंटैक्ट हाइमेन. इंटैक्ट हाइमेन ऑल्सो प्रिवेंट्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पैथोजन in case of virgin girls. So if an unmarried or sexual or a girl who is never been sexually active comes to you with the symptoms, or you think that it may be PID, or she presents with the bilateral TO mass on ultrasound, so more likely it is tubercular in nature, because tubercular it is a separate chapter, we'll discuss it in detail. It is a blood-borne infection. So if a virgin girl or a girl who is unmarried and sexually inactive comes to you with the signs of PID, more chances are that it is tubercular infection. Now ये तो थे आपके protective feature, intact hymen, then acidic pH of vagina and alkaline and pH of the thick mucus plug in the cervix. When these mechanisms are breached, especially after menses, during menses or after menses, then
आफ्टर abortion and after delivery. What is happening? First of all, जो एंडोमेट्रियम है आपका, वो वहाँ से आपको रॉ शेड हो जाता है एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रॉ सरफेस, प्लस आपका म्यूकस प्लग वहाँ पे एब्सेंट हो चुका होता है आफ्टर दीज, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन. एंड थर्डली जो आपका जो वेजाइना का जो पीएच होता है एसिडिक, वो भी इसमें डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको देयर आर मोर चांसेस ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड. अब ये इन्फेक्शन आता कहाँ से है? देयर इज ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड, PID is associated with copper T insertion. And on video on copper T I have discussed that one contraindication that you must always remember, presence of vaginitis is a contraindication to insertion of intrauterine devices. Always remember this because it will be of very much importance in your clinical practice. Vaginitis अगर किसी फीमेल को है and she is willing for intrauterine device insertion, you explain her that first we will treat your vaginitis and then maybe next cycle we will insert it. So vaginitis is if there is a presence of infection, obvious infection in the lower genital tract, it is better to avoid intrauterine device insertion. Now this is about what are the high risk factor. स्पेशली जब आपका असेप्टिक अबॉर्शन हो रहा है तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. इवन इन केसेस ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन, आपको अगर डायलिटेशन क्यूरेटाज करना, सक्शन इवैक्यूएशन करना पड़ रहा है या क्यूरेटाज करना पड़ रहा है, या आपका आफ्टर डिलीवरी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना पड़ रहा है, तो देयर आर वेरी मच हाई रिस्क कि उसमें आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकती है. So you have to be vigilant in such cases. Now coming to what are the most common causes of PID. It is sexually transmitted disease is the most common cause of PID. उसमें भी आपके दो common causative agents होते हैं, गोनोकोकाई and क्लेमाइडिया. क्लेमाइडिया अगर किसी को हो रहा है, एक तो वो थोड़ा साइलेंट रहता है, इट इज़ वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंस नाउअडेज, द इन्फेक्शन रिमेन्स साइलेंट, उसमें बहुत ज़्यादा उसको क्लिनिकल सिम्टम नहीं आते हैं एंड इट इज़ कॉजिंग मच मोर डैमेज टू द फैलोपियन ट्यूब एज कम्पेयर टू द गोनोकोकाई इन्फेक्शन. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंस. इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ tubal blockage which leads to infertility in young women. So chlamydia infection, it is silent and also it causes more adhesion as compared to the gonococci. So obviously these gonococci and chlamydia, they both are non-motile. So how is it possible that they reach up to the fallopian tube inside the woman's abdomen? So there is a mechanism that they ascend in a piggyback fashion along with the sperms. So it is seen that gonorrhea or gonococci infection, they are not seen in a woman whose partner is not having sperms. जिनको स्पर्म्स, जिन मेल्स में स्पर्म्स नहीं होते हैं, उनके जो फीमेल पार्टनर होते हैं, उनको इसका होने का चांस ऑलमोस्ट निल है. दे फॉलो द स्पर्म्स, जो स्पर्म के अपवर्ड मूवमेंट से जो करंट बनता है उसके साथ ये ऊपर होते चले जाते हैं एंड देन दे रीच फ्रॉम द इनसाइड, ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी and reach the fallopian tube and they infect from the inside of the mucosa. Why this is important? क्योंकि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो पहुंच रहा है वो लिम्फेटिक से पहुंच रहा है and they reach the outer side of the fallopian tube. So they reach the inside of the fallopian tube. यहाँ पे डैमेज शुरू करते हैं म्यूकोजा पे आपका एंड यहाँ पे फिर आपका नेक्रोसिस होता है, इट गेट्स शेड एंड
पस आपका पुरुलेंट मटेरियल भर जाता है, यहाँ से आपके फिम्ब्रिए से भी वो पुरुलेंट मटेरियल निकलता है, ओवरी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इट बिकम्स रिटॉर्ट शेप्ड. आई विल टेल यू व्हाट इज रिटॉर्ट. So this is the mechanism of inflammation in case of gonococci and chlamydia. It is occurring from inside the tube. More of the damage is being caused. Sometimes there is no adhesion outside, but still because of the mucosal damage that has occurred, यहाँ पे आपके अंदर ही अंदर एडिशन बन जाते हैं and it later leads to infertility and even ectopic pregnancy. Because जो आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज्ड आपका जो जाइगोट होता है वो यहीं पे ट्रैप हो जाता है एंड इट लीड्स टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इन्फ्लेमेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूकोजा टूवर्ड्स आउटवर्ड. ओके, एंड देयर आर सम इन्फेक्शन वी विल डिस्कस लेटर जिसमें से आपका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड गो टूवर्ड इनसाइड. तो उसमें बाहर आपके एडिशन ज़्यादा होते हैं. इन केसेस में अगर ये आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो भले ही आपको ट्यूबल एनाटॉमी नॉर्मल नज़र आएगी बट इनसाइड डैमेज हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. So there is always a salpingo-oophorytis. As we have discussed earlier, both the fallopian tube and ovary, they both are simultaneously involved. इनकी इतनी close proximity होती है कि आपका फैलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों का इन्फ्लेमेशन साथ साथ इसमें होता है. ठीक है. नाउ हाउ टू डायग्नोज दिस इन्फेक्शन. वेजाइनल स्वैब डिस्कस ऑफ डिटेल डिस्कशन विल बी डिस्कस्ड इन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट. अभी मैं आपको बता दूं क्लेमाइडिया इज इम्पॉर्टेंट. एक तो आप उसको वेजाइनल स्वैब से डायग्नोज कर सकते हैं एंड ऑल्सो नाउअडेज कल्चर होता था पहले. इट वॉज डिफ़िकल्ट when कल्चर करना पड़ता था टू डायग्नोज दिस. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज हर जगह आपकी रिसर्च सेटिंग अवेलेबल नहीं होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में. यू नीड सम क्विक थिंग्स. सो अब एलाइजा, बिकॉज ऑफ द एलाइजा टेस्ट देर आर टेस्ट टू डायग्नोज एंटीजन एज वेल एज एंटीबॉडी इन द सीरम. एंटीजन फ्रॉम वजाइनल स्वैब कैन बी टेस्टेड and antibody in the serum. So if there is IgM positive, we know IgM is seen in early infection. IgM positive है तो that means कि there is a recent infection. If IgG is present, it indicates that somewhere in the back the woman has been infected with the chlamydia trachomatis. Now vaginal swab में अगर हम ELISA से एंटीजन फाइंड आउट कर लेते हैं तो that is more confirmatory of the present infection as compared to the testing of the antibody in serum. What are the other pathogenic organism that cause. देखिए जो वजाइना एंड जो आपका पेरिनियल पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे आपके कमेंसल भी प्रेजेंट होते हैं. सो इफ यू आइसोलेट सम पैथोजन in culture, that doesn't mean that woman is having PID. Okay, it has to be correlated with the clinical condition of the woman. If she is showing signs of PID, she has come to you with the clinical presentation of PID, fever, high grade fever, lower abdominal pain, discharge, and if you find out that there is some infection, you take the vaginal swab and you get some infective organism. That means it is of मोर इम्पॉर्टेंस. अगर आप एक रूटीन वेजिनल स्वैब ले रहे हैं और उस वुमेन इज हेल्दी एंड इफ यू आर गेटिंग सम पैथोजन लाइक ई कोलाई और व्हाट, देन इट इज़ अ कमेंसल. सो ऑलवेज कोरिलेटेड बिकॉज वहाँ पे आपके कमेंसल ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. सो डोंट कन्फ्यूज. देखिए केवल अगर हमने पैथोजन आइडेंटिफाई कर लिया दैट वुमेन इज हैविंग PID, जैसे माइकोप्लाज्मा होमिनिस, it has been diagnosed in almost 50% of the sexually active women. It has been isolated from vaginal swab in 50% of sexually active women, but in cases of PID it is the pathogenic organism in only 7% of the cases. Now one more important organism nowadays is Mycoplasma genitalium, which is nowadays a newer pathogen causing this PID. So what are other? Tubercle bacillus, viruses, there are various viruses, and E. coli. So if we
come to the common organism that are responsible for pelvic inflammatory disease. They are sexually transmitted, which are gonococcus, chlamydia, mycoplasma and trichomonas. Trichomonas, they can move upward because they are flagellated. कितने flagella होते हैं trichomonas में? 4. They are flagellated. Gonococci and chlamydia, they both are non-motile, still they reach following the sperm in a piggyback fashion. वो जो करंट बनता है उसके साथ they move upward. But trichomonas, it is itself motile. So these are the 4 sexually transmitted diseases. Now what are pyogenic? Pyogenic, that means usually they are blood-borne and they are aerobes, Staphylococci, Streptococci and E. coli. Now what are anaerobes? They are bacteroid fragilis. If you find them, doesn't mean that she is having PID, infected. There has to be clinical signs of PID also. Then Peptococcus, Clostridium, Actinomyces, especially in case of IUD insertion, and tubercular salpingitis, which will be taken in a separate chapter. It is in detail. So bacterial vaginosis, we know bacterial vaginosis, it can also lead to PID. If a woman is having, you see on per vaginal examination, you see signs of bacterial vaginosis, and if she is also having signs of PID, so there are chances that bacterial vaginosis cause PID. But how it causes, वो आपका एंडोमेट्रियम के जरिए होते हुए नहीं जाता है, एंडोमेट्रियल कैविटी की तरफ से नहीं जाता है. It goes through lymphatics and it infects from the outside. I just discussed just back कि जो आपका chlamydia and gonococci होता है, they infect from inside. The damage first occurred in the mucosa and then it goes towards the periphery. But in cases of bacterial vaginosis का जो infection अगर PID में convert हो रहा है, it will go through the lymphatics, it will cause the outside infection. पहले आपका ट्यूबर जो fallopian tube है वो outside से inflame होगी, वहाँ पे आपके adhesion बन जाएंगे and then it will move towards inside. So sometimes mucosa is spared in if it is diagnosed early and treated early. And more important, as we have seen, there are multiple microorganisms that are causing this, and also there are commensal. अगर आपका immunity कम हो रही है और आपका मान लीजिए pH भी कम हो रहा है और आपको क्यूरटाज हुआ है, वहाँ पे एनीमिया भी हो गया है पेशेंट में और उसको अंदर कुछ टिश्यू बिट्स भी मिल गए हैं, लाइक आफ्टर अबॉर्शन और आफ्टर डिलीवरी, देन देयर आर मोर चांसेस कि इट इज़ अ polymicrobial infection, and that's why you need multiple agents to tackle, antimicrobial agents to tackle this condition. So this is important, why multiple antibiotics are to be administered, because it is a polymicrobial condition. So now in cases of in India, what are the other common condition that why the PID is more common? First of all, जो deliveries जो होती हैं, deliveries when they are conducted at home, they are usually conducted by untrained person or dies. So they are conducted by untrained person. So there are more chances of infection. Now what next? Minor operative procedures such as DNC or suction evacuation or HSG that we do, if we overlook vaginitis, that we may cause infection to ascend. Now, and other thing that I told, introduction of IUCD, that has to be done thorough. Aseptic precaution has to be taken. No touch technique that has been discussed in the video. You can go and watch in the video in the topic of birth control. So what are the precautions that are to be taken while introducing IUCD? You have to rule out this thing, vaginitis, and tuberculosis is blood-borne. And pelvic peritonitis may occur due to appendicitis or diverticulitis. In that case, वो जो infection होता है वो बाहर की तरफ से आता है, so it will involve outside
mucosa, outer mucosa. So in case of chlamydia, always remember, in case of chlamydia and gonorrhea, it is from the inside to outside, and in case of bacterial vaginosis, if it is causing PID, it is from outside to inside. सो अब आप क्लिनिकल कंडीशन में वो कैसा आएगा? हाँ, एक तो इट इज़ अ डिसीज ऑफ यंग वुमेन हु आर सेक्शुअली एक्टिव. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यंग वुमेन हु इज सेक्शुअली एक्टिव, इंक्रीज्ड प्रोमिस्क्यूटी, अगर उसके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं देन शी इज़ एट मोर रिस्क. एंड अगर देर इज़ अ हिस्ट्री, यू शुड ऑलवेज elicit द हिस्ट्री ऑफ एनी abortion, स्पेशली septic abortion which are done not in the authorized centers. Although India is having a very liberal law for abortion, but still the rate of septic abortion is too high. So you should always ask in detail about the history of any septic abortion or any puerperal sepsis or any intervention post delivery, like manual removal of placenta. Now what are the factors that may help in stopping this infection, protective effect? एक तो हमें पता है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. बैरियर मेथड इज known to reduce STDs. When it reduces sexually transmitted infection, definitely it will reduce the chance of PID. There are two other contraceptive methods that help in reducing the PID. You should always remember, one is use this tubectomy. Tubectomy, because what happened, tubectomy is done, fallopian tube is cut, and hence the passage of tract is hampered, और जो आपके causative organism है they cannot ascend in the fallopian tube. And the other thing is progesterone only pill. Progesterone only pill. Why? Because it causes cervical mucus thickening. Cervical mucus बहुत thick हो जाता है, impermeable to sperm and also to this organism. So this tubectomy and this progesterone only pill, they are effective for gonococci and chlamydia infection, and this also trichomonas. But always remember, if a woman is having bacterial vaginosis, still she can have this PID. Even if she is tubectomized or she is taking this pill, because it is going through the lymphatics and not through the endometrial cavity and from the inside. So this difference is very much important, and you may get multiple choice question based on this concept. Outside is looking okay, but inside there is a damage. She had a history of PID. What probable infection, causative organism? So you should always remember, first option will be chlamydia. Even if gonorrhea is present, your option should be chlamydia, because chlamydia, I have told you, it is a silent infection and causing more damage as compared to gonorrhea. So chlamydia is gaining very much importance. So this was all about the introduction of the PID, and what important point you have to remember being a medical student, and these may be asked in your MCQs, and you should have this depth knowledge, and it will be beneficial to you and your future patients also. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड कोई टॉपिक आपको और जानना है, पढ़ना है पहले, तो यू प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल डेफिनेटली कम उसका वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी. थैंक यू. Hello friends, welcome back to the second video on the series of pelvic inflammatory diseases. In the first we have discussed कि क्या क्या ऐसे
प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं या फिर जिसके हट जाने से या कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो रिकरेंस होता है, द रिकरेंस रेट इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ इंक्रीजेज विद एवरी न्यू एपिसोड। जैसे अगर आपको एक बार देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ PID इन पास्ट, देन the chance of getting PID is around 1%, but if there is a history of previous PID, then the chance is 8%. And similarly, if you have around 3 previous episodes of PID, then the chance of next episode increases by up to 75%. So when you take the history in your examination, always take this negative history or positive history whichever is present in your case. So ये इस नेगेटिव हिस्ट्री या पॉजिटिव हिस्ट्री जो भी आपकी निकल के आएगी, बट आपको उसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID, शी मे नॉट बी अवेयर दैट शी हैड PID, सो यू हैव टू आस्क द सेम कि आपको इस तरीके से पहले भी हुआ है क्या। यू हैव टू आस्क दिस इन डिटेल कि आपको पहले भी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ क्या, इन्फेक्शन हुआ क्या। आप पूछेंगे कि आपको पहले PID हुआ था, उसको पता ही नहीं व्हाट इज़ PID, सो शी विल से नो, मे बी शी हैड 2 एपिसोड्स। बट अगर आप उसको पूछेंगे तो हो सकता है वो बताए कि हाँ मुझे इस तरीके से पहले भी हुआ है। सो यू हैव टू आस्क इन द पेशेंट्स ओन लैंग्वेज कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID है क्या। अब नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पैथोलॉजिकल एनाटमी। जब आप ओपन करके देखते हैं, मान लीजिए, हालांकि हम हर एक केस को ओपन नहीं करते हैं, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द पैथोलॉजिकल एनाटमी कि अंदर क्या हो रहा है, जिससे फिर आप उसकी पैथोजेनेसिस को हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स हमें समझ में आएंगे कि वाई दो सिम्टम्स आर अराइजिंग। सो फर्स्ट स्टार्ट विद एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। जो आपकी PID अगर हम कहते हैं तो PID को हम क्लिनिकली वी कैन एक्यूट PID, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक PID। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हम इसमें पैथोलॉजिकल एनाटमी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। सो व्हाट इज एक्यूट सेल्फिंजाइटिस? द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग दैट द फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसमें देयर इज अ इन्फ्लेमेशन एंड एक्यूट मीन्स सडन ऑनसेट, short history, there is a short history, sudden onset. So this is the meaning of acute. आगे जब भी आप कहीं पे पढ़ेंगे acute या chronic, उसमें आपको ये difference पता होता है। acute मतलब there is a sudden onset, short history, chronic means there is a long history। ठीक है, so acute मतलब sudden onset है, self-ingitis, so there is a inflammation of fallopian tubes, because we know that PID, pelvic inflammatory disease, is inflammation of fallopian tube and ovary gets involved simultaneously. The only condition where ovaries are involved singularly, fallopian tubes are spared, but there is only involvement of ovary। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, मैंने बताया है, only condition is mumps। अदरवाइज जो आपका PID होता है, जब हमारा फैलोपियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओवरी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, सो ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। सो सबसे पहली बात, अगर आप मान लीजिए खोल के देखेंगे आपको क्या दिखेगा। हमने देखा है PID आपकी कॉजेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ गोनोकोकाई एंड क्लैमाइडिया, and it is the pathogenic organism, they are coming from inside the fallopian tube। और एक हमने देखा है आफ्टर, usually it occurs after sepsis or after septic abortion or after puerperal sepsis and in cases of bacterial vaginosis। what is happening, जो आपका pathogenic organism है, it is coming through the lymphatics, सेल्यूलाइटिस होगा यहाँ पे बाहर की साइड में। पहले आपका फैलोपियन ट्यूब का आउटर पोर्शन इज इन्वॉल्व एंड देन द इन्फेक्शन फ्रॉम हेयर विल गो टूवर्ड्स द इनसाइड।
सो विल डिस्कस। अब हम इसमें जो हम ले रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा अंदर से इन्फेक्शन आ रहा है, यूजुअली गोनोकोका एंड क्लेमाइडिया जो करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो आपका अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ऊपर से एनाटॉमी देखेंगे, हम बाई चांस हमें एनाटॉमी देख रहे हैं, तो उसकी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कैसे नज़र आएगी? बिकॉज इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। आपको ये इडीमेटस नज़र आएंगी, थिक होंगी, इडीमेटस नज़र आएंगी। ऊपर जो आपकी जो वेसल्स हैं वो बहुत थिक, बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आएंगी, है ना। और आपका इसमें से जब ये थिकनिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो बाहर बाहर आपको इसमें फ्लूइड ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये थिक होंगी। व्हाट एल्स? दे विल बी इडीमेटस। नॉर्मल लुकिंग जो ग्लिसनिंग सरफेस होता है वैसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसमें जो आपके वेसल्स हैं वो बहुत ही मोटे डायलेटेड नज़र आएंगे, जो आपके सुपरफिशियल वेसल्स हैं। ठीक है, एंड द श्योर शॉट साइन, अगर आपको लेप्रोटॉमी या लेप्रोस्कोपी इसमें करनी पड़ रही है, श्योर शॉट साइन, क्योंकि ये कंडीशन जो मैंने आपको आउटर सरफेस पे बताई है, दिस मे बी प्रेजेंट इन एनी अदर केस ऑफ पेल्विक पेरिटोनाइटिस, मे बी बिकॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस। उन केसेस में भी आपको ये बाहर से ऐसा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नज़दीक की प्रॉक्सिमिटी है, तो आपको वो इस तरीके से नज़र आ सकता है। बट श्योर शॉट साइन कि ये दिस इज़ सेल्फिंजाइटिस इज़, आपको जो फिम्ब्रियल एंड है वहाँ से अगर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज इफ़ यू कैन सी इट इज़ कमिंग, इट इज़ अ श्योर शॉट साइन दैट दिस इज़ एक्यूट सेल्फिंजाइटिस ओनली एंड ओनली। सो अगर आपको वो नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो हम आगे देखेंगे कि क्या होगा इसमें। जब ये तो आपका फर्स्ट स्टेज है कि आपका ये हाइपरेमिया हो गया, इडिमा हो गया, ठीक है, डायलेटेड टॉर्चुअस वेसल्स हो गए, ठीक, इडीमेटस आपको फैलोपियन ट्यूब नज़र आ रहा है, ग्लिसनिंग आपकी ख़त्म हो गई है, एक्सुडेट साइड से भी निकल रहे हैं वो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका धीरे धीरे क्या होगा, पस अगर शुरू में निकल रहा है तो आप डायग्नोसिस ले सकते हैं। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? मे बी in early cases pus will be discharging, in later cases what happens, यहाँ से आपका जो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है, जो इन्फ्लेमेशन यहाँ हो रही है, इट विल ब्लॉक दिस फिम्ब्रियल एंड। यहाँ से फिम्ब्रियल एंड आपका जो ओपन था वो आपका बिकॉज ऑफ फिब्रिनस डिजेनरेशन, जो पस है आपका, उससे क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ये आउटर कवरिंग जो है, इस ओपनिंग जो है, इट विल गेट क्लोज। अब क्लोज है और हमें पता है कि जो गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया में जो इन्फेक्शन हो रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे भी आपका जो म्यूकोजा है उसमें व्हाट इज़ हैपनिंग इन द म्यूकोजा इनसाइड, ये तो अभी बाहर का हमने पढ़ा। इन द म्यूकोजा यू कैन सी द इन्फिल्ट्रेट, आपका इन्फ्लेमेटरी चेंजेस म्यूकोजा में भी होंगे, वहाँ पे आपका नेक्रोसिस भी होगा एंड देयर विल बी डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज इनसाइड दिस, एक्सफोलिएशन होगा। आपकी जो ट्यूबल ये कैविटी है, इसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो पेंटअप जमा होते जाएंगे। जब तक आपका फिम्ब्रियल एंड ओपन है वो बाहर निकलता रहेगा, इट विल गो टू द पाउच ऑफ डगलस। वंस दिस स्टेज ये आगे प्रोलॉन्ग होता है विदाउट ट्रीटमेंट, द फिम्ब्रियल एंड इट गेट्स सील्ड बाय द फिब्रिनस डिजेनरेशन एंड व्हाट हैपन, जो आपका अंदर प्यूरुलेंट मटेरियल जमा हो रहा है वो पेंटअप होने लगता है, वो जमा होने लगता है एंड इट विल गिव राइज टू द शेप ऑफ रिटॉर्ट। बिकॉज एम्पुलरी पोर्शन जो है वो आपका डिस्टेंड होगा, बट जो जहाँ पे ये आपका इंटरस्टिशियल और इस्थमस है वो आपका डिस्टेंड नहीं होगा, तो इट विल गिव राइज टू रिटॉर्ट शेप। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज रिटॉर्ट। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, ये आपको पता है कि हाँ रिटॉर्ट शेप हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली रिटॉर्ट? आपने केमिस्ट्री में देखा होगा अपनी लैब में, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, खासकर ये डिस्टिलेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, इसे रिटॉर्ट कहते हैं। इसके अंदर हमें लिक्विड डालना है, यहाँ से हम हीट करते हैं तो वेपर्स आपके यहाँ पे जाते हैं, तो इसको हम रिटॉर्ट कहते हैं। तो आप ये देखिए, क्योंकि ये आपका ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा, यहाँ से वो आपका पतला ही रह जाता है, डिस्टेंशन आपका इस पार्ट में नहीं होता है। सो दैट्स वाई वी से इट रिटॉर्ट शेप्ड फैलोपियन ट्यूब। सो ये आपकी नेक्स्ट स्टेज में आपको रिटॉर्ट शेप फैलोपियन ट्यूब मिल गया। अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अंदर चल रहा है। अब हिस्टोलॉजी में हमें क्या नज़र आएगा? फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे, अंदर म्यूकोजा में बहुत सारे
प्लाइके होते हैं, है ना, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। जब हम इसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो क्या होता है, ये जो आपके बहुत प्लाइके हैं इट बिकम्स फ्लैटेंड। तो आपको फैलोपियन ट्यूब कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। सो आपके क्या हो रहे हैं, ये जो प्लाइके हैं दे आर गेटिंग फ्लैटेंड बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन। जब ये डिस्टेंड होगा तो ये सारे फ्लैट हो जाएंगे, है ना। ये जब ये फूल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने बलून रख के फुला दिया तो ये सब पूरा ऊपर एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका फ्लैटनिंग ऑफ द प्लाइके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर, ये आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमने फिर आपका जो ओवरी है वो बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इट गेट्स इन्वॉल्व। जब शुरू में आपका पस यहाँ से निकल रहा है, ओवरी तब भी इन्वॉल्व हो चुकी होती है। जब ये ट्यूबो ओवेरियन मास जब ये सील होता है तो ओवरी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी होती है एंड इट बिकम्स अ ट्यूबो ओवेरियन मास। आप इसमें ओवरी, हेल्दी ओवरी कहाँ है अलग से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन लेप्रोटोमी। सो दिस बिकम्स ट्यूबो ओवेरियन मास। अब अगर हमने इसको यहाँ ट्रीट कर दिया, मे बी इन्फ्लेमेशन आपकी यहीं की यहीं रुक जाएगी। सपोज in remote area, suppose the patient fails to attend some clinician and the pathogenesis goes on, what will happen, जो आपकी यहाँ पे ये inflammation चल रही है it will expand to the adjacent areas। adjacent areas में अगर जाएगा तो क्या क्या बनेगा, आपका पेरिटोनियम बिल्कुल वही है, तो generalized peritonitis हो सकता है, paralytic ileus हो सकता है। पैरालिटिक आइलियस मीन्स आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट ठप हो जाते हैं। देन पेल्विक और इवन सब डायफ्रैग्मेटिक, आपका पेल्विक एब्सेस तो बनेगा ही, हमने अभी देखा था कि यहाँ से आपका जब एक प्यूरलेंट डिस्चार्ज निकलेगा तो डिपेंडेंट एरिया पाउच ऑफ डगलस है, वहाँ पे आपका एब्सेस बन गया, पहुँच गया, कलेक्ट हो गया। अब ये जो है आपका फाइब्रोटिक बैंड होता है एक, इन केसेस ऑफ गोनोकोका एंड क्लेमाइडिया, जो आपके लिवर से के पास से जाता है, उसकी वजह से आपका लिवर और जो डायफ्राम के बीच का स्पेस है वहाँ पे आपका पुरुलेंट एक्यूमुलेशन होता है एंड इट इज़ कॉल्ड फिट्ज़हर्ग-कर्टिस सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। और बिकॉज यहाँ पे जब आपका सब डायफ्रैग्मेटिक एब्सेस है, उस पेशेंट को यहाँ पे एक्यूट, यहाँ पे कई बार पेन महसूस होता है डायरेक्टली। सो शी विल कम टू यू कि यहाँ पे मेरे पेन है, और आप सोचेंगे दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, एंड इफ़ यू फेल टू एग्जामिन प्रॉपरली एंड इफ़ यू फेल टू टेक हिस्ट्री यू में मिस कि उससे पहले उसको क्या क्या हुआ था, तो वो बताएगी फिर लोअर एब्डोमिनल पेन पहले था, फीवर भी था, अब मुझे वॉमिटिंग भी है और यहाँ पे पेन है, तो वो आके बोलेगी, क्योंकि जो उसको सबसे लास्ट में हुआ होता है वो सबसे पहले बताएगी। सो व्हाट शी विल से, मुझे वॉमिटिंग है और मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो यू मे मिस द डायग्नोसिस ऑफ PID एंड यू मे ट्रीट द वुमेन एज case of acute cholecystitis. So this is important. Why in cases of PID you can get right hypochondriac pain. So that is very important, Fitzhugh-Curtis syndrome. ठीक है. Now in cases of PID which follows, this was the pathogenesis which was taking place. And हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई, जब आपका ट्यूबल यहाँ पे एडिमा भी हो रहा है तो आपका अंदर का म्यूकोजा जो है वो तो आपका बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। अंदर जब आपका यहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है तो उसके बाद वहाँ पे एडिजन भी बन जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस एडिजन फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका जो म्यूकोजा है और एडिशंस की वजह से देर पोस्ट PID चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी एज वेल एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर वेरी हाई। और बाहर भी जब, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बाहर भी है, यहाँ पे भी पास एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर बाद में जब वो हील होगा उसमें डिजेनरेशन होगा, उसमें भी आपके साइनिके बनेंगे। सो दिस मे गेट adhered to broad ligament also, मे बी ये भारी हो जाते हैं, सो दे फॉल posteriorly behind the uterus and जो पूरा TO मास है वो घूम के पीछे आपके posterior surface of uterus पे जाके फ्यूज़ हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी frequently seen, so you should be aware। कई बार आपका जो ये फाइब्रोसिस और एडिजन फॉर्मेशन है इट कम्स विद द इंटेस्टाइन ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें अगर वो इग्नोर अनट्रीटेड जा रही है तो ये सब एडवांस्ड केसेस है। फॉर्चुनेटली विद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सो दीज केसेस आर रिपोर्टेड वेरी लेस नाउअडेज। Now in case of post-abortal and puerperal infection, what is happening?
जो हमने देखा कि जो आपका पैथोजन है इट इज़ गोइंग थ्रू द लिम्फेटिक्स। यहाँ पे आपका ब्रॉड लिगामेंट में सेल्यूलाइटिस आएगी, उसके फीचर्स आपको नज़र आएंगे, और बाहर आपका पहले स्टार्ट होगा। नॉट द इनसाइड विल बी अफेक्टेड मच। आपका फैलोपियन ट्यूब बाहर से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पे आपके फाइब्रोसिस होगा, ये एडिशन होगा, बट फॉर्चुनेटली द म्यूकोजा वो आपका ठीक रह जाता है। इनकेस अगर आपका ब्लॉकिंग नहीं होती है तो जो चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी आर लेस इन सच cases. So what is now coming to subacute PID. Subacute PID, if you start treating this PID, you start antibiotic, but the patient fails to take the antibiotic properly. What happen, जो आपका इन्फ्लेमेशन यहाँ चल रहा है, जो इतना एक्यूट स्टार्ट हुआ था, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वो स्लो हल्के लेवल पे चलता रहेगा. So she is now relieved of her symptoms. She has stopped taking the medicine or she is taking it intermittently. And what happened, the pathogenesis that occurred, it is taking place at a slower pace and gradually. So it will lead to subacute PID. And now what is chronic PID? Suppose you fail to treat this condition in its acute stage, or you initiate treatment late. हमने जब तक मान लीजिए हमारे फिम्ब्रिए क्लोज हो गए, हमने उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं दिया और आपके फिम्ब्रिए क्लोज हो गए, तो क्या हो जाएगा, फिर जो ये ट्यूबो ओवेरियन मास अभी बना था ये रह जाएगा. सो इट इज़ क्रॉनिक PID. वो आपका मास इफेक्ट आपको देगा, देन इनफर्टिलिटी कॉज करेगा. हाइड्रोसल्फिंक्स बन सकता है. सो व्हाट इज़ हाइड्रोसल्फिंक्स? हाइड्रोसल्फिंक्स इज द सेम ये दिस फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, उसके अंदर उसकी जो व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ हाउ डू यू डिफरेंशिएट हाइड्रोसल्फिंक्स फ्रॉम क्रॉनिक पायोसल्फिंजाइटिस. कहने को दोनों में एक ही चीज़ है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है और अंदर पेंटअप सिक्रीशंस है. बट इन केस ऑफ हाइड्रोसल्फिंक्स, जो उसकी आपकी फैलोपियन ट्यूब या आपके जो आपको जो एक मास नज़र आ रहा है, उसकी वॉल जो होंगी दे आर थिन ट्रांसल्यूसेंट. बट इन केस ऑफ क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस व्हाट इज़ हैपनिंग, जो उसकी वॉल है, जो उसका आपका क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस की जो वॉल है, इट विल बी थिकेंड एंड फाइब्रोटिक. ठीक है ना. तो ये डिफरेंस आपका आता है. इन केस ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स अंदर का जो आपका मटेरियल है वो स्टेराइल हो जाता है, बट इन केस ऑफ क्रॉनिक पायोसल्फिंजाइटिस अंदर पुरलेंट डिस्चार्ज भरा रहता है एंड वो जो प्रोसेस है वो चल रहा है. तो पस डिस्चार्ज, अंदर नेक्रोसिस चल रही है म्यूकोजा पे, मे बी एट ए स्लोअर रेट. सो धीरे धीरे वो बनता रहता है और वो आपका धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करता रहता है. सो दिस इज हाइड्रोसल्फिंग्स. वॉल ऑफ द हाइड्रोसल्फिंग्स इज थिन. वो होता वो रिटॉर्ट शेप्ड है, बोथ आर रिटॉर्ट शेप्ड. ठीक है, दे बोथ आर रिटॉर्ट शेप्ड एंड इट व्हेन विल यू सी दिस हाइड्रोसल्फिंग्स, कितना टाइम एटलीस्ट होना चाहिए आफ्टर द एक्यूट एपिसोड कि आपका हाइड्रोसल्फिंग्स बन जाए. इट इज 6 वीक्स. ऑलवेज रिमेंबर, इट मे ऑल्सो कम एज एन MCQ. आपसे ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वुमेन इज कमिंग विद द मास, पेनलेस मास, ठीक है, एंड अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस एंड ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, per speculum examination it is okay. Per vaginal examination it is non-tender. Cervical movements are non-tender and she has a past history of fever and acute abdomen around 6 weeks back. So what could be the diagnosis? So you can, then you have to remember, because it is hydrosalpinx and it is now non-tender, 6 weeks has elapsed, so it is hydrosalpinx. In case of chronic pyosalpinx इट इज़ यूजुअली पेनफुल. आपका जो मूवमेंट्स होते हैं वो है पेनफुल एंड इट इज़, जो हाइड्रोसल्फिंग्स होता है इट इज़ यूजुअली नॉट मच दिस थिंग, एडिशन इतनी नहीं होती हैं. बट क्रॉनिक पायोसल्फिंग्स में आपके एडिशन अच्छे से हो जाते हैं. मे बी इट इज़ फिक्स्ड इन द ऑन द पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल. अब एक नेक्स्ट है क्रॉनिक इंटरस्टिशियल सल्फिंजाइटिस. इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. डेफिनेटली इट इज थिकेंड, इट इज फाइब्रोटिक, बट देयर इज नो डिस्टेंशन. आपके फैलोपियन ट्यूब भी ओपन यहाँ से रहता है. तो जो आपका आ रहा है वो निकल रहा है. वो आपका जो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब का जो एंड ब्लॉक हुआ था, फिम्ब्रियल एंड जो ब्लॉक हुआ था बिकॉज ऑफ एडिशन, वो नहीं हुआ है, लेकिन इसके वॉल थिक होते हैं और फाइब्रोटिक होते हैं.
ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट? बिकॉज वी नो दैट व्हेन द फैलोपियन ट्यूब आर गेटिंग इन्फ्लेम्ड because of the purulent discharge and close proximity of the ovary, it gets involved. So आपका communication होता है maybe with the follicular cyst, and you cannot identify कि ovary कहाँ है इसमें और tube कहाँ है. It becomes all entangled. So this is tubo-ovarian cyst, and if it is if the material is purulent, it is tubo-ovarian abscess. And now, last one of chronic PID is tuberculous form, that will be dealt in separate chapter. Now coming to staging. अभी हमने ये पढ़ा है ना. अब हम देखते हैं stage. It can be mild, PID can be mild, PID can be moderate, and PID can be severe. ठीक है. And we have seen that there is a fallopian tube involvement. Now depending upon the severity of tubal damage that is occurring, it is not about the severity of mild, moderate or severe. The clinical presentation नहीं हम बात कर रहे हैं. The staging is by the amount of tubal damage that is occurring. So not about the clinical staging. It is not a clinical staging. It is about the type of tubal damage that is occurring. Gennesville has divided PID into 5 stages. So stage 1. What is stage 1? Stage 1 where there is a very minimal tubal damage. So what? There is acute self-ingitis, but there is no peritonitis and neither there are adhesions. सेल्फिंजाइटिस हैज़ ऑकर्ड, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आ रहा है, वहाँ से वो भी नज़र पुरुलेंट डिस्चार्ज भी आ रहा है फैलोपियन ट्यूब से. ना तो आपकी इसमें पेरिटोनाइटिस के कोई साइन सिम्टम्स नहीं है और एडिजन भी बिल्कुल कोई नहीं है. एकदम इनिशियल स्टेज में ये है. नाउ ना स्टेज 2. व्हाट इज स्टेज 2? नाउ व्हाट नेक्स्ट? Acute self-ingitis है but there is peritonitis. This is without peritonitis and no adhesion. It is without. It is with peritonitis. Peritonitis has set in. और क्या है? There is also purulent discharge. कहाँ से आता है? वो fimbral end से. That means कि अभी तक आपका fimbral end block इसमें stage 2 में नहीं हुआ है. Now stage 3 acute self-ingitis है आपकी. ठीक है, वो तो होनी है क्योंकि हम अभी PID की स्टेजिंग की बात कर रहे हैं. एक्यूट सेल्फिंजाइटिस है पर सुपर इम्पोज ट्यूबल ऑक्लूजन. आपका क्या हो गया है? जो अभी इसमें से जो पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा था स्टेज 2 में, स्टेज 3 में हमने क्या देखा? वो फिम्ब्रियल एंड जो हैं आपके वो सील हो गए हैं डायरेक्ट, और सील होने के बाद में यहाँ पे ये ट्यूबल ऑक्लूजन हो गया है और उसके अंदर जो पुरुलेंट डिस्चार्ज भर रहा है. सो इसमें हमें क्या मिलेगा? We can remember tubo-ovarian abscess. Stage 3. Now what is stage 4? ये जो आपकी tubo-ovarian abscess बनी है इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, यहाँ ओवरी लग गई है, ये रिटॉर्ट शेप बन गई. तो इसमें क्या हो गया? ये बिकॉज इसमें इतना टेंशन थी, ये टेंस था और ये रप्चर हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टेज 4. अब जब ये रप्चर होगा, वी ऑल नो व्हाट विल हैपन. आपका पेल्विक पेरिटोनाइटिस अच्छे से होके ऊपर भी जाएगा और ये जो पुरुलेंट डिस्चार्ज है, पैलेटिक आइलियस वगैरह भी ये सब कुछ कर सकता है. सो इट इज़ एडवांस्ड थिंग. एंड फिफ्थ वन इज ट्यूबरकुलर सेल्फिंजाइटिस. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एक्यूट PID. स्टेज 1 ओनली इन्फ्लेमेशन, नो पेरिटोनाइटिस, नो एडिशन. इन स्टेज 2 in self-ingitis, acute self-ingitis along with purulent discharge and peritonitis. स्टेज 3 में क्या हो गया है? वो आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस बन गया है. एंड स्टेज 4 में ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस जो बना था वो रप्चर हो गया है. एंड स्टेज 5 इज ट्यूबरकुलर PID. सो अब हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि इसके पैथोजेनेसिस क्या, इसकी पैथो एनाटमी क्या है, एनाटमिकल फिजियोलॉजी हमने हर चीज़ देख ली. अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस, बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ इट इज़ ऑकरिंग, व्हाट आर द पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट आर ऑकरिंग. हम देखेंगे एक सिम्टम्स एंड साइंस. सिम्टम्स जो पेशेंट आके हमको बताएगा, साइंस जो हम पेशेंट में ऑब्जर्व करेंगे. तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा?
PID किस एज की बीमारी है? यंग वुमेन हु इज सेक्सुअली एक्टिव. So this is the first thing you will note in the person. So young sexually active woman. Now what is the most how she will present to you? She will present with the pain in abdomen and it is of which nature? Acute, sudden onset pain in abdomen. So अब हमने यहाँ पे देखा है कि stages होते हैं PID में. तो where the pain will be located in early stages? Yes, definitely it is located lower abdomen and as it is bilateral involvement उसको पूरा lower abdomen में pain होगा. It is not like कि मेरे एक right side है या left side है. So she will come to you and say कि मेरा lower abdomen में pain है. She is a sexually active young woman. And what next? अगर वो थोड़ा देर से आती है आपके पास तो शी में से कि मेरे को पहले नीचे दर्द हुआ था, अब नाउ थोड़े दिनों बाद मुझे पेन जो है वो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है. ठीक है. व्हाट, ये तो वो बोल के आई. आप क्या देखेंगे? उसको फीवर भी होगा हाई. और फीवर कैसा होगा? इट विल बी हाई ग्रेड फीवर. ठीक है. अराउंड 104 वगैरह तक उसका फीवर होगा. अगर वो आपको अर्ली स्टेजेस में नहीं आई है, थोड़ा और एडवांस स्टेज में आई है, तो व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज ऑफ द इंटेस्टिनल इन्वॉल्वमेंट पेरिटोनाइटिस, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? वॉमिटिंग. हमें पता है कि भाई एब्डोमिनल कुछ होता है, पेरिटोनाइटिस में क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग में बी देयर. ओके. नाउ शी मे ऑल्सो कम विद द सिम्टम ऑफ डिस्यूरिया और वेजाइनल डिस्चार्ज. डेफिनेटली वेजाइनल डिस्चार्ज विल बी देयर. सो यू विल हैव टू आस्क इन द if an acute, if a young woman sexually active comes to you with pain in lower abdomen, always take a negative history or positive history, whichever is present, about the vaginal discharge. So this you have to be very careful about. ठीक. Now coming to menstrual irregularities may be present, especially in cases of chronic PID because of endometritis that is occurring there along with the fallopian tube damage. But in cases of acute PID, what happens? Because of the inflammation that is occurring in the fallopian tube, also there is endometritis, and a woman may experience, it is not always, may experience menstrual blood flow which is not expected at that time. So with fever, a sexually active woman coming to you with acute lower abdominal pain, high grade fever, and if she says that I was not expecting my periods but they started and they are usually heavy, so always there is a clinical impression that she is a case of PID. Also you have to ask about any history of amenorrhea, because why? There may be septic अबॉर्शन, क्रिमिनल अबॉर्शन भी उसका हुआ हो सकता है. कई बार वो उसको कंसील भी करती है. सो यू हैव टू बी वेरी टेक्टफुल इन आस्किंग कि कब हुआ था, लास्ट कब हुआ था. यू आस्क द डेट. सो अगर वो बोलेगी कि आप पूछेंगे कि आपका पीरियड रुका हुआ है तो वो बोल देगी नहीं. बट इफ़ यू आस्क कि कब हुआ था, सो शी विल टेल यू द डेट. ओके, कि वो कब हुआ था. ओके. नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये तो आपके हमारे सिम्टम्स के साथ वो आई है. नाउ व्हाट साइंस विल यू? हाँ, और सिम्टम क्या होंगे? अगर आपको उसमें पेरिटोनाइटिस ऊपर तक फैल गया है तो बाउल इरिटेशन का, डायरिया एंड रेक्टल इरिटेशन, क्योंकि अगर आपका पाउच ऑफ डगलस में पास जमा हुआ है तो देयर इज़ ए रेक्टल इरिटेशन एंड उसको स्मॉल लूज मोशन स्मॉल क्वांटिटी में होंगे. सो ये बड़ी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि उसको फ्रीक्वेंट मोशन भी बाद में आने लगते हैं. नाउ कमिंग टू साइंस. व्हाट आर द साइंस? जब वो इतना हाई ग्रेड फीवर लेकर आई है और आपको पता है कि इतना इन्फ्लेमेशन वहाँ चल रहा है, तो शी विल बी इल लुकिंग. हर जनरल कंडीशन इज़ नॉट गुड. हर टेम्परेचर इज़ हाई. यू हैव टू मेंशन इट इन योर examination. Her temperature is whatever you measure, you note it down. Then there is, because of this fever and inflammation, there is tachycardia, but her blood pressure is usually within normal limit. There is no hypotension. In case there is hemorrhage, that is in case how will you differentiate? In case of ectopic pregnancy, she may be hypotensive, but in this case, even though there is tachycardia, that is occurring because of the inflammation that is occurring, infection, and not because of the hypotension. So her blood pressure is usually within normal limit. So tachycardia is present because of the all these things. She is dehydrated and
her respiratory rate will be high, tongue will be coated. You have to all mention it, either it is present or not, you have to mention in your examination. And per abdominal examination, now taking per abdominal examination, what will you notice? Abdomen is, if it is a little advanced, it is distended, tender, and you may not even able to palpate a ovarian any mass because of the tenderness and rigidity. But if you suppose start the treatment and pain is relieved, then on examination you may find lower abdominal mass which is coming from the pelvis. So pelvic origin mass कैसा होता है per abdomen में? So examiner will ask you, so how will you differentiate whether the mass is originating from pelvis or not? So what is the answer you are going to give? If you are not able to reach the lower surface, lower margin पे अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, then it is a pelvic origin mass. And if you are able to reach the lower margin of the mass, then it is not of pelvic origin. So pelvic origin का mass आपको वहाँ पे नज़र आ सकता है अगर patient आपकी after treatment उसको आराम पड़ा है and her tenderness is relieved. Now सेक्शुअली एक्टिव वुमेन है, उसको पेन एब्डोमेन है और उसने वेजिनल डिस्चार्ज भी आपको बताया है, एक्यूट है, फीवर है, हर चीज़ है. सो यू आर गोइंग टू लुक फॉर पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन ऑल्सो. यू हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ वेजाइनाइटिस एंड ऑल्सो सर्वाइकल डिस्चार्ज. हाउ इज द सर्वाइकल डिस्चार्ज? यू विल नोटिस दैट देयर इज अ प्यूरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज ऑल्सो. सो and then on per vaginal examination, cervical movement tenderness, and you may feel adnexal mass which is also tender, or sometimes it may be fixed to the uterus, sometimes it may be free from the uterus, but usually it is fixed to the posterior surface of the uterus. And also on per speculum examination, you, in case if there is a collection in the pouch of Douglas, what will you notice? You will notice that it is bulging outwards because of the this pelvic pouch of Douglas accumulation of pus. And bogginess you may feel on per vaginal examination. So you have to be careful in all these things. Always look for per speculum examination, and this will be helpful to you in for differential diagnosis. Now the examiner may ask why this is not appendicitis. Why this is not appendicitis? What are the findings that is going against appendicitis? Because acute abdomen differential diagnosis is definitely appendicitis. Also in such women, ectopic pregnancy. So you will be asked how will you differentiate it from acute appendicitis? Why this is not acute appendicitis, or why this is not cholecystitis, or why this is not ectopic pregnancy? So you have to be careful about the per speculum examination. You have to be, in case of PID there is purulent vaginal discharge, सर आपको vaginitis भी नज़र आएगा, और cervix से purulent discharge या डिस्चार्ज भी नज़र आएगा, वो आपको फिर हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे. वी हैव टू टेक द सर्वाइकल स्वैब एज वेल एज हाई वजेनल स्वैब, बोथ वी हैव टू टेक. सो नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो भी आपके एक वुमेन में एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेज होते हैं, दे ऑल कम इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू कि आप उसको किस किस फीचर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले एक्यूट अपेंडिसाइटिस. येस, एज वाइज बोथ आर द डिसीजेज ऑफ यंग वुमेन, यंग एज. ओके, नाउ बट वॉमिटिंग भी हो सकती है जो कि इसमें एडवांस्ड केसेस में होती है. पर आपका जो पेन होता है अपेंडिसाइटिस का पेन, इट विल बी फर्स्ट इन द पेरिअम्बलिकल एरिया एंड देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द towards the right side. But in case of PID, how the pain started? It started in the lower abdomen and then it moved upward. Okay, now in case of appendicitis, although there may be fever, but it is not as high grade as it is found in PID, acute PID. On per speculum examination, there are no signs of any इन्फेक्शन, वेजाइनाइटिस और एनी सर्वाइकल डिस्चार्ज भी उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है. आप उसका जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं मिल रही है. सो दिस इज़ द वे यू विल differentiate it from acute appendicitis. Now the second differential diagnosis is ectopic gestation.
यंग वुमेन की एक ये डिसीज़ है डेफिनेटली दोनों। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी और पीआईडी में क्या चीज़ है, किसी को अगर आपने पूछा, हिस्ट्री में पूछा, इज देयर ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ पीआईडी या सिम्टम सिमिलर टू पीआईडी, तो वो बोलेगी हाँ। अब पीआईडी के बाद एक्टोपिक हो सकती है डेफिनेटली, एंड पीआईडी के बाद सेकंड एपिसोड ऑफ पीआईडी हो सकता है डेफिनेटली। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग। सो एक तो पहले क्या आएगा, अमीनोरिया। इन केस ऑफ एक्टोपिक जेस्टेशन अमीनोरिया। इन केस अगर आपका वहाँ पे सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है तो देयर में बी हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया एंड शी में कंसील द हिस्ट्री ऑफ एनी इंटरवेंशन। सो उसमें भी अमीनोरिया हो गया, इसमें भी अमीनोरिया हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, टेम्परेचर। यस, in case of PID there is high grade fever, but in case of ectopic pregnancy fever is not of much commonly seen. Also there is अगर आपका एक्टोपिक रप्चर है so what, क्या आपको क्या हाइपोटेंशन मिलेगा। हाइपोटेंशन मिलने से क्या होगा आपका, हेमोरेज होने से क्या होगा आपका, हाइपोटेंशन होगा। तो उसमें हाइपोटेंशन भी मिलेगा, टैकीकार्डिया भी मिलेगा, फीवर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आपको वेजाइनाइटिस या सर्वाइकल डिस्चार्ज नहीं दिखेगा, लेकिन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में कॉमन फाइंडिंग दोनों में आपका सर्वाइकल मूवमेंट टेंडरनेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ विल यू विल, एंड ऑन इन्वेस्टिगेशन on ultrasound it will be more clear to you. And also you should always do a pregnancy test, spot pregnancy test, urine pregnancy test to confirm whether it is positive or not. So these are the things that will differentiate. Now the third is diverticulitis. Diverticulitis जो है वो above 50 एज की वुमेन की डिसीज़ है कॉमनली, एंड PID जो है वो यंग एज में होता है। वेरी रेयरली इट मे हैपन कि आपका लेटर एज में इन हर 40s और 50s शी अंडरगो सम दिस abortion, that too criminal abortion, and she may land up in PID because of that septic abortion. So ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, पेन जो है इट इज़ इन डाइवर्टिकुलाइटिस इट इज़ इन द लेफ्ट आइलिएक फोसा, एंड ऑल्सो वही फीवर आपका कम होता है इसमें, और जो बाकी के साइंस एंड सिम्टम्स डिहाइड्रेशन वगैरह जो है वो इसमें इतना नहीं होगा। नाउ ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, डेफिनेटली आपका ओवेरियन मास PID में भी है और ओवेरियन सिस्ट आपकी जो है वो ट्विस्ट हो गई है। तो इसमें क्या आएगा, वही फीवर इसमें यूजुअली नहीं होता है, वॉमिटिंग ज़रूर होगी इसमें, फीवर नहीं होगा इसमें, एंड आप जब पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे देयर इज़ नो वजाइनाइटिस एंड देयर इज़ नो सर्वाइकल डिस्चार्ज ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या आपको इसमें हिस्ट्री में नहीं आएगा। और जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो डायग्नोसिस इज़ प्रेटी क्लियर। नाउ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, बिकॉज हमने देखा है कि इसमें जब आपका पेरिटोनियम इन्वॉल्व होता है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस होती है या रेक्टल इरिटेशन होता है, तो क्या हमने देखा था कि फ्रीक्वेंट मोशन, लूज मोशन वुमेन को हो रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ से भी। लेकिन उसमें बाकी साइंस नहीं होता, फीवर नहीं होगा उसको, है ना, पेन नहीं होगा, इतना पेन एब्डोमेन जो है, वॉमिटिंग नहीं होगी, वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह नहीं होगा। सो वो एडवांस्ड डिसीज़ का सिम्टम है जो फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट है। लेकिन उसमें बाकी दूसरे सिम्टम्स या ये एक्यूट एब्डोमेन वगैरह नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिस्यूरिया वगैरह, उसमें भी आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है। उसमें PID में भी डिस्यूरिया फील हो सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, आपका ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से। लेकिन वही है, आपका फीवर और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो इतनी ईजिली इसमें नज़र नहीं आती हैं। and after with the investigation you will be pretty clear. Now ruptured endometriotic cyst, पेन होगा, एक्यूट एब्डोमेन होगा डेफिनेटली, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें आपका फीवर यूजुअली इतना नहीं होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है, और अगर आप पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे तो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया एंड मिनोरेजिया इन such cases. Now septic abortion, because septic abortion is a causative factor for PID definitely. Fortunately the treatment is for both is same.
So septic abortion may mimic clinical features of PID. More though I can say that septic abortion is a causative factor for PID. So पर ट्रीटमेंट दोनों में सेम रहता है, ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपका दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस उसमें हमें एक चीज़ देखनी होती है कि सेप्टिक अबॉर्शन आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। वंस द इन्फ्लेमेशन सेटल्स देन यू विल बी गोइंग फॉर क्यूरेटाज, बट दैट विल नॉट बी योर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन केस ऑफ PID। सो दैट इज़ ऑफ इमीडिएट आपको उसमें नहीं करना होता। डेफिनेटली आप पहले 48 आवर्स एंटीबायोटिक देंगे, सेटल करेंगे, और अगर आपका कुछ प्रेजेंट है अनलेस एंड अनटिल आपका सेप्टिक अबॉर्शन के बाद में वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन ट्रेमेंडस ब्लीडिंग करके आ रहा है, तब तो आप उसे तुरंत इंटरवीन करेंगे, अदरवाइज यू विल वेट फॉर 48 आवर्स। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। सो इतने टाइम में आपको अल्ट्रासाउंड के साथ आपका ये कंफर्म हो जाता है। एंड कोलेसिस्टाइटिस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिट्स फिट्ज-हर्ट-कर्टिस सिंड्रोम, देयर इज़ अ फाइब्रस बैंड एक्सटेंड करता है कहाँ से, फ्रॉम द राइट एडनेक्सा एंड टूवर्ड्स द अंडर सर्फेस ऑफ द लिवर। सो आपका वहाँ पे सब डायफ्रेगमेटिक अब्सेस बनती है एंड इट कॉजेज पेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अप टिल द डिफरेंशियल डायग्नोसिस आई हैव डेल्ट विद। इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन करिए योर क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। और कोई भी आपको न्यू टॉपिक अगर जानना है तो डेफिनेटली यू प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कम विद द वीडियो वेरी सून। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? Welcome back to the video on the topic pelvic inflammatory disease. This is the third video in this series and we will be discussing the investigation, फिर उसका about in short about chronic PID, management protocol and prognosis and prophylaxis. So first of all investigation, जब कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है जिसे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि PID है, तो हम यूजुअली इट इज़ 65 to 70% केसेस जो होते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस आपकी एक्यूरेट होती है एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। बिफोर दैट वी नीड सम इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन आप याद रख सकते हैं किस प्रकार से, एक तो टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, जो बाकी आपके कन्फर्म नहीं हुए हैं, समटाइम्स आपको लग रहा है कि ये आइदर दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस और मे बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर ये ट्यूबो ओवेरियन मास जो है वो नियोप्लास्टिक ओरिजिन का तो नहीं है। तो इसलिए उस समय एक कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड दूसरा सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होगा, हालांकि ये सब साथ साथ होते हैं बट आपको अपने दिमाग में बना के रखना है वाई यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द patient. So first of all to confirm the diagnosis, and second is if you have diagnosed this about the severity, कि इस इन्फेक्शन का जो प्रेजेंट इन्फेक्शन एक वुमेन के ऊपर इस समय हो रहा है वो उसकी बॉडी पे कहाँ क्या क्या असर हुआ है। एंड जब आप सिवियरिटी के लिए करेंगे, इफ़ शी इज़ अ सिवियर केस, देन टू फॉलो अप ऑल्सो कि आपका जो ट्रीटमेंट आपने इनिशिएट किया है उससे आपके पेशेंट को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो अगर कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हमें करना है टेस्ट, पहले मैं इसी की बताती हूँ। आपको क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, आपके पास CT है और आपके पास MRI है, इमेजिंग कराएंगे, ठीक है। सो इमेजिंग में आपके पास अल्ट्रासाउंड है, CT एंड MRI है। बेस्ट अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें आपका आ जाएगा अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको इसमें जो ट्यूबो ओवेरियन मास जो नज़र आएगा, मे बी आपको इसमें पेल्विक पाउच ऑफ डगलस में कलेक्शन भी नज़र आ सकता है। तो ये आपका अल्ट्रासाउंड जो है इसमें आपका ट्यूबो ओवेरियन मास का डिस्क्रिप्शन आता है, तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये आपका जो ट्यूबो ओवेरियन मास है, क्योंकि उसका इतना हेट्रोजिनस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें सॉलिड कंपोनेंट भी नज़र आएगा, आपका डेब्रिस भी नज़र आएगी। सो यू मे बी कंफ्यूज कि इन केस कि अगर वुमेन जो है थोड़ा सा आपकी ज़्यादा एज की है, सपोज वो आपकी 40s में है, तो आपको लगेगा कि कहीं ये कोई आपकी ओवेरियन नियोप्लेजिया तो नहीं है। उसके लिए आपको एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन CRP हेल्पफुल करेगी। CRP का क्या वैल्यू है,
it will find out whether it is inflammatory or it is non-inflammatory. Ovarian neoplasia is a non-inflammatory, CRP normal आएगा. In case of PIDs आपका CRP हाई आएगा. तो एक तो ये सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन आप इसका CRP करा लेंगे. सेकंड आपका जो ये CT, कई बार आपको अल्ट्रासाउंड में कुछ डाउट है कि सपोज दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस और दिस इज़ नियोप्लास्टिक ओवेरियन जो टियोमास है, तो आप क्या करा सकते हैं उसमें CT स्कैन. CT स्कैन में जो फीचर्स आते हैं वो आपके टिपिकल थिक वॉल्ड ओवरी का आएगा. साथ में अगर इसमें आपको गैस नज़र आ गई, इंट्रालीजनल गैस, सो दिस इज़ वेरी मच डायग्नोस्टिक कि दिस इज़ PID एंड PID ओनली. बट CT हर पेशेंट में नहीं कराई जाती है, MRI भी बहुत हर पेशेंट में नहीं कराई जाती है, अनलेस एंड अनटिल योर डाउट इज़ नॉट क्लियर. सो ये तो आपकी इमेजिंग हो गई डायग्नोसिस के लिए. और साथ में एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन CRP का मैंने रोल बताया कि हर PID के केस में आप CRP नहीं कराएंगे. जहाँ पे आपको डाउट है कि ये जो जो ये आपको दिख रहा है टियोमास, इफ इट इज़ नियोप्लास्टिक और इन्फ्लेमेटरी, देन ओनली यू विल गेट दिस CRP. एंड दिस CRP इज़ ऑल्सो, इफ़ यू आर गेटिंग इट डन, देन इट इज़, यू कैन यूज़ इट फॉर प्रोग्नोस्टिक ऑल्सो, कि आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट यू कैन रीटेस्ट कि आपका CRP डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है. नाउ ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू असेस द सिवियरिटी. सबसे पहले तो आप कराएंगे उसका CBC. और देखिए यूजुअली दीज इन्वेस्टिगेशंस आर डन इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट मोस्टली. अल्ट्रासाउंड कैन बी डन इन नॉन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, बट हम सिवियरिटी की बात कर रहे हैं. नॉर्मल आपको माइल्ड PID लग रहा है किसी पेशेंट का, तो देर इज़ नो नीड टू गेट ऑल दीज टेस्ट. बट इफ़ यू आर क्लिनिकली आपको पेशेंट बहुत इल नज़र आ रही है, उसका एकदम हाई ग्रेड फीवर है, पूरा एब्डोमिनल टेंडरनेस है, तो आपको उसको एडमिट करेंगे सिवियरिटी के केस पे, तब आप उसके CBC करेंगे. यहाँ पे आपको एक तो इसका हीमोग्लोबिन पता चलेगा. इफ हर हीमोग्लोबिन इज लो, देन यू कैन गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो व्हाट इन्वेस्टिगेशंस कम, इट डिपेंड, इट गिव्स यू द वे फॉर ट्रीटमेंट ऑल्सो. देन ऑल्सो आपको TLC DLC मिलेगा इसमें. उसके आधार पे वो आपका अगर TLC हाई है, यूजुअली आपको सीवियर केसेस में TLC हाई मिलता है, फिर आपको डे 3 पे आप इसको रीअसेस करेंगे तो आपको TLC डाउन आता नज़र आएगा. CBC में आपको ये फाइंडिंग हो गई. देन अगर पेशेंट सीवियर है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर KFT असेसमेंट, क्योंकि कई बार आपका एक्यूट रीनल फेलियर, जो आपका इन्फ्लेमेशन है, अगर वो जो इन्फेक्शन है आपका सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको एक्यूट रीनल फेलियर मिल सकता है. आप अगर सीवियर केस है तो ऑल्सो टेक ब्लड कल्चर टू रूल आउट सेप्टिसीमिया वेदर इट हैज़ सेट इन और नॉट. एंड ये तो आपका बाद की बात है. इससे पहले आप जो लेंगे, अगर आपको लेना है वाकई में PID में, यू मस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट द हाई वेजाइनल एज वेल एज सर्वाइकल स्वैब. एंड इन सम केसेस यू कैन इवन टेक यूरिथ्रल एंड ऑल्सो सेंड यूरिन फॉर इन्वेस्टिगेशन. यूरिन आप भेज सकते हैं, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं. और आप भेजिए उसमें लिख के, जब यू आर सेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन, यू प्लीज़ राइट डाउन दैट पेशेंट इज़ अ केस ऑफ क्वेरी पेल्विक PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़. तो उससे क्या होगा, दे कैन ऑल्सो लुक फॉर, दे विल बी कॉशियस टू लुक फॉर क्लेमाइडिया इन सच केसेस. You have to tell them कि why you are sending the urine in this case. So they will be then looking for chlamydia. And suppose special एक investigation, अगर आपका जो PID है and there is a IUCD inserted, you must not forget about actinomycosis. इन दैट केस आप जो स्मीयर भेज रहे हैं, उसका सर्वाइकल स्मीयर जो भेज रहे हैं, उसके लिए आप स्पेशल मेंशन करिए कि इसमें वो एक्टिनोमाइको जो है बैक्टीरिया, उसको देखेंगे. इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव एंड फ्लैजिलेट. टिपिकल इसमें क्या मिलता है एज सच, इसको इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो दिस. एक तो आपका क्लिनिकली इसमें सल्फ़र ग्रैन्यूल्स नज़र आएंगे डिस्चार्ज में, सल्फ़र ग्रैन्यूल्स येलो पाउडरी सब्सटेंस जैसे नज़र आता है.
कमिंग फ्रॉम द सर्वाइकल ऑस। दूसरा, पेशेंट को IUCD लगी हुई है। तीसरा, शी इज़ ए क्लिनिकल केस ऑफ PID। सो इन दिस केस यू आर वेरी मच श्योर, बट यू प्लीज़ स्टिल सेंड टू बी डॉक्यूमेंटेड एटलीस्ट। आप उसका स्मीयर भेजिए कि उसको वो ग्राम पॉजिटिव फ्लैजिलेट जो बैक्टीरिया है उसको वो आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। इट में टेक अप टू 9 months to 1 year ऑल्सो। लॉन्ग एंटीबायोटिक कोर्स रहते हैं इसमें। सो इट इज़ बेटर टू सेंड इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग इट क्लिनिकली। मे बी यू आर श्योर क्लिनिकली बिकॉज ऑफ सीइंग दैट सल्फर ग्रैन्यूल्स, IUCD एंड PID, बट स्टिल टू डॉक्यूमेंट यू मस्ट सेंड द सर्वाइकल स्मीयर, ताकि एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट हो जाए। सल्फर ग्रैन्यूल्स आज आपने देखे हैं, कल को कोई और देखेगा, उसे नज़र नहीं आएंगे। मे बी यू हैव स्टार्टेड ट्रीटमेंट, उसके बाद वो नज़र नहीं आएंगे। कल को अगर कोई पेशेंट आपको एलेज करे कि भाई आपको इतनी लंबी, कल को उसको एंटीबायोटिक से सपोज कोई प्रॉब्लम होने लगती है, जो लॉन्ग ले रही है, वो कह सकते हैं कि हमें बेकार में इतनी लंबी एंटीबायोटिक खिला दी। देयर आर मेनी लीगल इश्यूज ऑल्सो इन योर प्रैक्टिस। सो उसके लिए इट इज़ वेरी गुड टू डॉक्यूमेंट सच थिंग्स। इसलिए आप उसका स्मीयर ज़रूर भेजें अपनी तरफ से उसको, ताकि वो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट आ जाए कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ पाई गई है। दूसरा, रूटीनली PID में आप क्या चीज़ मिस नहीं करेंगे। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन CBC वगैरह, तो आप CBC यूरिन तो भेजेंगे ही भेजेंगे। आप पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें से सबसे पहले तो आप यूरिथ्रल स्मीयर ले लो, देन हाई वजाइनल स्वैब लेना है, और एक लेना है आपको सर्वाइकल रीजन से एंडोसर्वाइकल स्वैब, वो भी लेना है। तो ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। अगर आपको क्लेमाइडिया लग रहा है कि क्लेमाइडिया का भी लेना है, आप मान लीजिए आप रिसर्च सेटिंग में हैं, तो वहाँ पे जो आपका लॉन्ग वायर होता है उस पर स्वैब, लॉन्ग वायर स्वैब टिप्ड विथ कैल्शियम एल्जीनेट, क्या होता है उसमें, दिस में कम एज एन MCQ, कैल्शियम एल्जीनेट, और उसको आप किस पे ग्रो करते हैं, दिस इज़ इनोकुलेटेड ऑन साइक्लोहेक्सिमाइड ट्रीटेड मैककॉय सेल्स पे फॉर कल्चर। ठीक है, दिस इज़ फॉर रिसर्च सेटिंग डेफिनेटली। अभी क्लेमाइडिया के लिए ELISA टेस्ट फॉर एंटीजन एज वेल एज एंटीबॉडी, दे बोथ आर अवेलेबल। सो अगर आपके पास एंडोसर्वाइकल स्वैब है, देन यू कैन पुट दैट एंडोसर्वाइकल स्वैब फॉर ELISA ऑफ एंटीजन डिटेक्शन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, दे बोथ आर प्रेजेंट। तो एंटीजन डिटेक्शन के लिए आप उसको भेजेंगे ELISA फॉर क्लेमाइडिया। दिस इज कंफर्मेटरी एक तरीके से, है ना, इफ़ यू आर नॉट इन अ रिसर्च सेटिंग जहाँ पे आप हर पेशेंट का कल्चर नहीं भेज सकते हैं। और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सेंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर IgG एंड IgM फॉर क्लेमाइडिया। तो अगर आप जानते हैं इफ शी इज IgM पॉजिटिव, दैट मीन्स कि उसका ये प्रेजेंट इन्फेक्शन है, एंड इफ शी इज IgG पॉजिटिव दैट मीन्स कि उसको पहले हुआ है, सो शी हैज़ अ हाई रिस्क अगेन फॉर सेकेंड एंड थर्ड एंड रिकरेंट एपिसोड्स। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया। और PCR इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर क्लेमाइडिया। और दूसरा एक है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट फॉर क्लेमाइडिया। So these are the investigations you are going to do. अभी हम जो हमने हाई वजाइनल स्वैब लिया या सर्वाइकल स्वैब लिया, कई बार कॉल्पोटॉमी करके वहाँ से जो पस है वो भी हम लेते हैं फॉर, फिर जब पस आता है तो उसको हम वी सेंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर आप PID सस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके पास कोई कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ रही है, तो यू जस्ट कैनॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू दैट कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा मल्टी फ्लोरा इसमें होता है। और जब आपके बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स दे इन्वेड द टिश्यू, पहला तो जो आपका पॉजिटिव है वो गोनोकोकाई एंड क्लेमाइडिया है, लेकिन दूसरे भी आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फिर आ जाते हैं जब एक बार इन्फेक्शन सेट होता है, क्योंकि आपका जो ये इतना यहाँ पे कमेंसल है, देन दे स्टार्ट इन्वेडिंग। तो
तो उसके बाद आपको जो कल्चर रिपोर्ट मिल रही है, इट मे नॉट बी एज एक्यूरेट एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू ग्रो दैट क्लेमाइडिया or that gonococcus in your culture plates also because of the multiple different organisms that are present. So आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपको मल्टीपल लेके चलना है. आपको कीमोथेरेपी एक तरीके से यू कैन से मल्टीपल कीमोथेरेपी आपको देनी पड़ेगी. इन दिस केस एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी आपको मल्टीपल देनी पड़ेगी. आप केवल एक एजेंट से नहीं सोच सकते कि यू कैन कवर दिस कंडीशन. There is also a treatment plan कि आप लेप्रोटॉमी करें. You see whether there is a purulent discharge coming from the femoral end, but that is not very successful. Also जो वहाँ से हम जो चीज़ लेते हैं, जो एस्पिरेट लेते हैं, वो हम क्योंकि वही मैंने आपको बताया, जब एक बार इन्फेक्शन इनिशिएट होता है तो करने वाले ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, लेकिन उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो टेक देयर प्लेस इन द पैथोलॉजी. सो जब हम ये एस्पिरेट वगैरह निकालते हैं तो उसका जो कल्चर का जो इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है. हम उसको ट्रीटमेंट में इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं. हमको ये मान के चलना है कि वहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट. और इसके अलावा नाउ विल गो फॉर क्रॉनिक पीआईडी. वन मोर थिंग, इफ़ सपोज अ पीआईडी पेशेंट कम्स टू यू, आपको उसको काउंसिल करना है पहले, एंड देन यू हैव टू सब्जेक्ट हर फॉर HIV testing also, and also other sexually transmitted diseases. But for HIV you have to first do her counseling, and if she says okay, I am ready for my HIV test, then you can go for HIV testing. So now chronic PID, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो it is a sequelae. Chronic PID is nothing but a sequelae of acute PID. तो इसमें क्या होता है आपका पेशेंट की जो मे बी शी हैज़ नॉट शी वॉज अ माइल्ड केस ऑफ PID, मे बी एक्यूट PID उसकी माइल्ड रही होगी. शी वॉज हाफ हार्टेडली ट्रीटेड बाय हर सेल्फ और बाय सम डॉक्टर. मे बी शी हैज़ नॉट टेकन द फुल course of the medicines, and what happens that she gets the recurrent episodes of mild PID, and then she lands up to be a chronic PID case. तो chronic PID case में क्या होता है, clinically the patient comes with the persistent lower abdominal pain. So what is important, they get persistent lower abdominal pain also, क्योंकि वहाँ पे inflammation चल रहा है, blood सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है. उसकी वजह से शी में डेवलप मिनोरेजिया, शी में डेवलप पॉलीमिनोरिया एंड ऑल्सो कंजेस्टिव डिसमिनोरिया. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होंगी, उसको डिसमिनोरिया होगा, उसको डीप डिस्पेरूनिया होगा, है ना. एंड ऑल्सो देयर वेजाइनल डिस्चार्ज मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट. अगर उसको सर्विसाइटिस भी है तो हो सकता है उसको वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है उसको इस समय वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट ना हो ना. अगर वो अब तक उसको चाइल्ड बियरिंग नहीं हुई है, देन शी मे हैव कम टू यू ओनली एज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी. देन व्हाट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, और आपका वहीं पे रेक्टल आपका पोस्टीरियरली लोकेटेड है, सो रेक्टल इन्फ्लेमेशन होती है, तो मे बी वुमेन ऑफ क्रॉनिक PID कैन ऑल्सो हैव frequent stools, passing frequent stools. She may have rectal irritation symptom also. अब आप जब उसका pelvic examination करेंगे, because it is a chronic PID, there is a definitely a adnexal mass is present. Maybe it is fixed because of the dense adhesion. आपका वो POD में भी गया हो सकता है, pouch of Douglas में भी गया हो सकता है. Posteriorly in the posterior fornix you may feel bogginess, tender, which is tender, and मे बी इतना सेल्यूलाइटिस होता है वहाँ पे लगातार होते होते. दिस सेल्यूलाइटिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर व्हाट इज कॉल्ड फ्रोजन पेल्विस. दिस मे बी आस्क्ड, दिस इज अ सिंपल थिंग, इट इज मे बी आस्क्ड कि फ्रोजन पेल्विस के लिए कॉजेटिव एजेंट वहाँ पे क्या हो रहा है. जो आपका पेल्विक पेरिटोनियम है उसका जो सेल्यूलाइटिस चल रहा है एक स्मॉल स्केल लेवल पे लंबे समय के लिए,
It may cause recurrent inflammation, inflammation, then adhesion. What happens कि आपका सब कुछ जो यूट्रस है, जो सारे आपका फेलोपियन ट्यूब्स या आपका जो हाइड्रोसेल्फिंग्स या पायोसेल्फिंग्स बना है, जो टीओमास है, दे ऑल गेट ट्रैप्ड इन एंड दे बिकम फिक्स, एडहेयर्ड, एंड दे आप जब पर वेजिनल एग्जामिनेशन करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड वेयर इज द यूट्रस, वेयर इज द प्योडी एंड एवरीथिंग. देयर इज यूजुअली tenderness. So this is the pelvic peritoneum cellulitis is the reason behind this frozen pelvis. Now chronic PID के जो differential diagnosis हैं, what are the chronic PID differential diagnosis? Number 1 is ectopic gestation. क्योंकि उसको menstrual irregularities हो रही हैं, उसको dysmenorrhea हो रहा है और आपका infertility भी रही होगी, या आपको past history of PID है. This past history of PID is also positive history in case of ectopic pregnancy. I told you क्योंकि वहाँ पे इंट्राट्यूबुलर जब एडिशन बनते हैं तो वहाँ पे आपका वो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वहीं ट्रैप होके वहीं इम्प्लांट हो जाता है, उसको आगे जाने का मौका नहीं मिलता है ना. तो इसमें आपको एक्टोपिक जेस्टेशन, इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको डाउट है, यू डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट. इट इज़ बेटर टू डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट. एक्टोपिक जेस्टेशन के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. If you have any vague complaint, vague symptom by a woman in her reproductive age group, whether she is giving a history of being sexually active or not, you must keep in mind the diagnosis of ectopic pregnancy. क्योंकि ectopic pregnancy एक ऐसी diagnosis है, if it is missed, it may cost life of the woman. आपने अगर उसे मिस कर दिया, you send her back home, there occurs hemorrhage, intraperitoneal hemorrhage, एंड वो इतना हो सकता है वो आपके हॉस्पिटल तक दोबारा वापस आ भी ना पाए. तो इसलिए एक्टोपिक जेस्टेशन को अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना है. अ वुमेन हु इज़ इन हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वेदर शी इज़ गिविंग हिस्ट्री ऑफ बीइंग सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, वो आपको भले ही कहती रहे कि नहीं मैं कोई सेक्सुअली एक्टिव नहीं हूँ, मे बी शी इज़ अनमैरिड, मे बी शी हैड मल्टीपल पार्टनर्स इन हर टीन एज, and she is a case of PID, chronic PID, and also associated with ectopic pregnancy. So this ectopic pregnancy always keep in your mind. आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कोई भी वुमेन आपके पास आती है, कोई ऐसे सिम्टम बता रही है जो कि आपके किसी भी चीज़ में फिट नहीं हो रहे हैं. सपोज ए वुमेन कम्स टू यू इन हर रिप्रोडक्टिव एज एंड वो कहती है कि मैं बस चक्कर खा के गिर गई. Okay, sometimes this is the only symptom she is coming to you with, and she may turn out to be an ectopic pregnancy. ठीक है, तो आपको जहाँ कोई डाउट आता है या कोई वेग सिम्टम नज़र आता है या आप किसी डायग्नोसिस में उसको फिट नहीं कर सकते हो सिम्टम्स को, ऑलवेज डू अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. इट इज़ वेरी ईजी टू डू एंड इट सेव्स लाइफ ऑफ द वुमेन. नाउ कमिंग टू यूट्राइन फाइब्रॉइड. यूट्राइन फाइब्रॉइड में भी देर इज़ अ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मे बी शी हैज़ मिनोरेजिया, डिस्मेनोरिया भी हो सकता है, पर उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन व्हाट यू विल नॉट फाइंड इज दैट जो आपने देखा है क्रॉनिक PID में, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि क्या आपका यूट्रस किधर है और ये किधर है, एंड देयर इज टेंडरनेस. इन फाइब्रॉइड केसेस देयर इज नो टेंडरनेस, नो सर्वाइकल मूवमेंट टेंडरनेस, नो एडनेक्सल टेंडरनेस, एंड यू कैन वेरी वेल मेक आउट द यूट्रस differentiated from other things. So this is on by per vaginal examination you can differentiate this uterine fibroid. Now pelvic endometriosis, yes definitely they both have the same thing. उनमें infertility हो सकती है, उनमें आपका menstrual irregularities हो सकती है, दोनों में deep dyspareunia होता है, दोनों में lower abdominal pain होता है. अब how will you differentiate whether this is pelvic endometriosis or not? एक तो आपका ultrasound आपको help करता है. Second, you can go for, if you are still in doubt, you can go for laparoscopic examination. देन ओवेरियन ट्यूमर हमने देखा CRP लेवल एक तो डिफ्रेंशिएट करते हैं ओवेरियन ट्यूमर में, और साथ में क्या होता है जो इतना फिक्स्ड होता है ना आपका सारा क्रॉनिक PID में सारा पेल्विक फिक्स हो जाता है, एडिशंस होते हैं मल्टीपल, एक तो वो नहीं होते, साथ ही साथ टेंडरनेस ओवेरियन न्यूप्लेजिया में नहीं होती है. सो दीज आर द थिंग
that goes against this ovarian ट्यूमर इन ए केस ऑफ क्रॉनिक PID. एंड इन ट्यूबरकुलर का तो हम एक अलग पूरा डिटेल्ड उसमें सीरीज़ में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो PID केस है, अगर वो सिवियर या मॉडरेटली सिवियर केस कंडीशन में, मॉडरेट और सिवियर कंडीशन में आपके पास आ रहा है, इट इज़ ईजी टू डायग्नोस इट एंड टू ट्रीट इट एंड यू गेट रिजल्ट्स. बट आपके जो मॉडरेट एंड सिवियर केसेस होते हैं, दे आर फार लेस एज कम्पेयर टू माइल्ड केसेस. एंड द माइल्ड केसेस दे कम इन OPD, रेगुलर OPD विजिट, दे कम टू यू. और हमें ये भी पता है कि जो आपका गोनोकोकाई और क्लेमाइडिया है, दे आर गोइंग फ्रॉम द इनसाइड, दे आर डैमेजिंग द ट्यूबल म्यूकोजा फर्स्ट, विच लीड्स लेटर ऑन टू इनफर्टिलिटी एंड ऑल्सो टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. मतलब दे आर डूइंग मच डैमेज, मोर डैमेज. ऑल्सो क्लेमाइडिया इट इज़ वेरी साइलेंट, मे बी उसके बहुत कम सिम्टम होंगे, बट डैमेज आपका उसके सिम्टम के मुताबिक बहुत अधिक होता है. एंड जो आपके लेट सिक्वेले होते हैं वो क्लेमाइडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं. सो we should not miss the condition in our clinical practice. So एक चीज़ आप याद रखिए, a woman in her reproductive age group, if she comes to you with urogenital symptom, either she is coming to you with UTI symptom, frequency of micturition or urgency or burning micturition, or she is coming to you with vaginal discharge, lower abdominal pain, then you keep in your mind that she is a case of acute PID mild and you treat the patient accordingly. You give her the antibiotic course that is required to be given to a case of PID. This is very important. ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वुमेन आई, बोली हेडेक है और आप उसको सोचेंगे कि यार ये PID हो सकती है, लेटर सिक्वेले इसको हटाओ तो दे दो, नहीं. बट इफ़ शी इज़ कमिंग टू यू विद द यूरोजेनाइटल सिम्टम, यूरोजेनाइटल सिम्टम के साथ अगर वुमेन आ रही है, यू टेक हर टू बी अ माइल्ड PID एंड यू ट्रीट हर. You give the medicine that are required. We have some antimicrobial drugs. We will be discussing it in the treatment part, and prognosis and prophylaxis we will be dealing in our next video. So this ओपन आपको अपने दिमाग में रखना है हमेशा कि कोई भी आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कोई वुमेन आ रही है विद अ यूरोजेनाइटल सिम्टम आपको आ रही है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, माइल्ड है, चाहे कितना ही माइल्ड हो, या शी इज़ कमिंग टू यू विद वैजिनल डिस्चार्ज और शी इज़ कमिंग टू यू विद दिस यूरिनरी सिम्टम, देन यू कंसिडर हर टू बी ए केस ऑफ माइल्ड PID एंड यू गिव द एंटीबायोटिक अकॉर्डिंगली. उसी तरीके से आप उसको एंटीबायोटिक दीजिए और उसको आपको पूरा कोर्स समझाइए उसको कि ये इतना दिन आपको खाना ही है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ गॉट ऑल. इस माइल्ड केसेस का दे आर, इट इज़ मॉर्टेलिटी इज नील, ऑलमोस्ट नील. बट इन इसके जो आप लेटर सिक्वेले देखेंगे, लॉन्ग टर्म सिक्वेले देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग टू अ वुमेन इन हर लाइफ. सो उन सफरिंग्स को कम करने के लिए और उन लेटर सिक्वेलीज को कम करने के लिए हमें इसको टाइमली डायग्नोज एंड ट्रीट करना ज़रूरी है. डायग्नोज करने के लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बता दिया है. इस टॉपिक में से आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, यू प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स टू पास दिस knowledge to them also. Thank you. Hello दोस्तों, welcome to the fourth video in the series of this pelvic inflammatory disease. In this video I am going to wind this topic off, and we have discussed almost all the things about pelvic inflammatory disease, what is acute, what is subacute, what is chronic, and how to identify this pelvic inflammatory disease. The most important thing, because डायग्नोसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब आप किसी चीज को, किसी बीमारी को डायग्नोज करेंगे तभी आप उसको ट्रीट करेंगे. सो दिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, क्योंकि हमने इसमें देखा है इट हैज गॉट बहुत लंबे सीक्वेले इसमें अच्छे खासे होते हैं. क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, बिकॉज इनफर्टिलिटी हो सकती है. तो इन केसेस इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू बी वेरी विजिलेंट वाइल डायग्नोसिंग. कोई भी
woman in her reproductive age group, if she is coming to you, whether she is sexually active or not as per herself, and she comes to you with the history of, with the complaint of either vaginal discharge or urinary symptoms, आप उसको माइल्ड पीआईडी मान के ही ट्रीट करिएगा, ताकि उसके जो लेट सिक्वेले हैं वो उसमें कम से कम हों. Moderate to severe cases, they are easy to diagnose, but fortunately they are less in number. ये अच्छी बात है, क्योंकि उनके ज़्यादा सिक्वेले होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं. तो मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म उस बीमारी का आपको कम देखने को मिलता है, और माइल्ड फॉर्म ज़्यादा मिलता है, जो मिस हो सकता है. तो क्यों मिस नहीं आपने होने देना है? जिसको भी आपको वल्वो वेजाइनल या यूरिनरी सिम्टम आपको आ रहे हैं, यू कंसिडर द वुमेन एज केस ऑफ पीआईडी. तो सबसे पहले हम इसमें हमें जो देखना है वो हमें कीमोथेरेपी देखनी है. इन केस माइल्ड आपको लग रहा है, आप किस में ट्रीट करेंगे उसको? ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करेंगे एट होम. आपको मॉडरेट या सीवियर डिसीज लग रही है, आप उसको एडमिट करेंगे. एडमिशन का जो 2 कारण है मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई, आपको रूल आउट करने हैं अदर कॉजेज, एंड टू एसेस कि वो कितनी सीवियर है, एंड टू इनिशिएट द कीमोथेरेपी ऑल्सो, एंटीबैक्टीरियल कीमोथेरेपी. तो व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड? टेट्रासाइक्लिन, इट इज 500 milligram QID or 6 hourly. Erythromycin, same 500 milligram QID or 6 hourly. Doxycycline 100 milligram BD डोजिंग होती है इसकी. क्लिंडामाइसिन की जो है इट इज 450 milligram and this is also QID 4 times a day, 6 hourly. And gentamicin, it is 80 milligram 8 hourly. जेंटामिसिन आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलवेज एसेस हर KFT. अगर आप जेंटामिसिन दे रहे हैं तो KFT उसका रूटीनली कराना ना भूलें. सो दीज मेडिसिन दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड. हमें मल्टीपल कीमोथेरेपी इसमें एंटीबैक्टीरियल कीमोथेरेपी देनी पड़ती है. दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, क्योंकि बिकॉज ये जो यहाँ पे कमेंसल बहुत है, और जब उनको अच्छा मीडियम मिलता है, जब यहाँ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं बॉडी के जब वो कम होते हैं, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग, एंड वहां पे आपका पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से केवल एक कीमोथेरेप्यूटिक जो आपका एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी है, एक एजेंट आपका सब पे भारी नहीं पड़ता है. इसलिए हमें कम से कम 2 या 3 भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस एंटीबायोटिक रेजीम्स दैट कैन बी यूज्ड, एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाट इज द ग्रीन टॉप गाइडलाइंस ऑफ RCOG फॉर स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स. you can be asked about this, and this you can also be asked about in your MCQ, either in your FMGE or also in your NEET PG. तो सबसे पहले सिफॉक्सिटिन 2 ग्राम इंट्रावेनसली दिया जाता है 6 आवरली, प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम IV 12 आवरली. एंड ये जो आपके इंट्रावेनस, जब सीवियर केस आपके पास एडमिट हो रहा है, देन यू हैव टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स. ऑल्सो यू हैव टू एसेस द सिवियरिटी, सो दैट आप देख सकें कि आने वाले समय में जो आपकी मेडिसिन है, दे आर एक्टिंग एज पर रिक्वायरमेंट, और इट इज फेलिंग द जो आपके जो एब्सेस है, अगर वो साइज कम नहीं हो रहा है, अगर उसकी क्लिनिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तब क्योंकि आपको आगे के स्टेप लेने पड़ेंगे. नेक्स्ट CD पे आपको ट्रीटमेंट मोडालिटी के चढ़ना पड़ेगा, विच इज मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द वुमेन. तो वो कंडीशन ऑफ द वुमेन एसेस करने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन करा लिए हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ. अब इस वीडियो में जो हम मेनली आपका जो मेडिसिन हैं जो यूज होती हैं. नाउ सेकंड थिंग, अगर आपको सस्पेक्टेड है क्लिंडामाइसिन, जिसका हमें सभी में सस्पेक्ट करना चाहिए. क्यों? आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, क्लिंडामाइसिन एजिथ्रोमाइसिन जो हम यूज करते हैं वो क्लेमाइडिया के लिए यूज करते हैं, और क्लेमाइडिया का मैं आपको बता चुकी हूँ. दिस इज आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली बिकॉज ऑफ इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, and as it has got clinical importance, it will be definitely asked to any of you in your exam, either in the form of MCQ or in viva question. क्लेमाइडिया का इम्पोर्टेंस PID में ये है कि इसके सिम्टम्स मिनिमल होते हैं, एंड इसका जो आपका
डैमेज है वो बाकी के कंपैरिजन में मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हमें क्लेमाइडिया को टारगेट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन जरूर देनी चाहिए। 500 मिलीग्राम आईवी हम उसको जब इंट्रावेनस स्टार्ट करते हैं तो 6 आवरली देते हैं, और हमें ये जो उसका प्रोग्रेस है वो कितने टाइम में एसेस करना है। सेम प्रिंसिपल जो बाकी सब इन्फेक्टिव डिसीजेज में करते हैं, इट इज 48 to 72 आवर्स वी हैव टू एसेस कि इसका कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फीवर सेटल हो रहा है नहीं हो रहा, पेन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो उसका गार्डिंग रिजिडिटी है वो सेटल हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आपने इसको इनिशियली अल्ट्रासाउंड किया है तो जो आपकी उसकी डायमेंशन है पस कलेक्शन की वो बाद में आपकी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस ऑल यू हैव टू एसेस विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स। अगर 72 आवर्स तक भी आपको कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है, देन आप सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सो एजिथ्रोमाइसिन स्टार्टेड, देन ओफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम 12 आवरली प्लस C4010 2 ग्राम आईवी, ये भी 12 आवरली दिया जाता है। ठीक है, 48 आवर्स जब आपका मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करी, सपोज इसको स्टार्ट करने के 24 आवर्स के बाद आपका फीवर गायब हो गया, पेशेंट नाउ इज अफेब्राइल, द वुमेन इज नाउ अफेब्राइल आफ्टर सपोज 24 आवर्स ऑफ इनिशिएटिंग द ट्रीटमेंट। अब आपको ये एंटीबायोटिक उसको इंट्रावेनस कब तक देनी है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट इज हर एक उसमें आप पढ़ेंगे हर जगह, ये एक कॉमन प्रिंसिपल है। आफ्टर शी बिकम्स अफेब्राइल स्टिल 48 आवर्स यू हैव टू गिव आईवी एंटीबायोटिक टू हर। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। फीवर खत्म हो गया, मरीज बोलेगा अब मैं घर जा रहा हूं, सो यू हैव टू टेल द पेशेंट दैट अगर आपने अभी हमने अगर दोबारा आगे की नहीं चढ़ाई है, केवल ओरली हमने दी है, आपको दोबारा से ये फ्लेयर अप हो सकता है, तो इट इज बेटर टू गिव मोर 48 आवर्स एंड व्हेन यू आर नाउ अफेब्राइल टिल 48 आवर्स देन विल डिस्चार्ज यू। सो मिनिमम आपको 3 डेज का एडमिशन उसका करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। उससे पहले अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, कई बार इन क्लिनिकल प्रैक्टिस वो नहीं रुकते हैं, देन in that case you write LAMA or going against medical advice because अपने आप को आपको लीगली भी बचा के रखना है ना। कल को कोई लीगल इम्प्लीकेशन ना हो, वो जबरदस्ती चले गए, एफेब्राइल हो गए, जबरदस्ती चले गए, दोबारा हो गया, वहां पे जाके उसका एब्सेस बस्ट हो गया एंड शी डाइज। सो व्हाट हैपेंस, ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर आएगा कि आपने उसे जाने क्यों दिया। वो कितना ही इंसिस्ट करे, कितना ही वो कहे कि मैं इसे दवाई दूंगा या मैं अपने घर पे उसको आईवी लगाऊंगा, आप उसके डिस्चार्ज कार्ड पे जरूर मेंशन करें कि शी इज गोइंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, नाउ लिवोफ्लॉक्सासिन इज ऑल्सो वन ऑफ द एजेंट। अगर ओफ्लॉक्सासिन है तो लिवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम BD फॉर 14 days कैन बी गिवन with or without metronidazole. It is better to add metronidazole because of the polymicrobial nature of the infection. Now clindamycin, when you have to give it 900 milligram intravenously every 8 hourly along with gentamicin, this you can give, और जब आप उसको डिस्चार्ज करेंगे तो आप you can give doxycycline orally for 14 days। डिस्चार्ज होने के बाद में भी। और क्लिंडामाइसिन की ओरल डोज हो जाती है, मैंने अभी बताया था आपको 450 मिलीग्राम ओरली QID 6 आवरली, है ना। BD डोजिंग किसकी होती है, BD डोजिंग होती है आपकी डॉक्सीसाइक्लिन की एंड मेट्रोनिडाजोल की। बाकी यूजुअली टेट्रासाइक्लिन की, इरिथ्रोमाइसिन की, क्लिंडामाइसिन की, इन सब की आपकी 6 आवरली डोजिंग होती है और एजिथ्रोमाइसिन की आपकी OD डोजिंग होती है। अब ग्रीन टॉप जो RCOG गाइडलाइंस हैं उसका आपको क्या वो क्या रिकमेंड करता है इन माइल्ड केस ऑल्सो। माइल्ड केस में आप उसे क्या देंगे, आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन स्टैट देंगे। 1 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रिएक्सोन 250 मिलीग्राम स्टैट फॉलोड बाय डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD along with मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम BD फॉर 14 days। ग्रीन टॉप गाइडलाइन क्या कहता है, वो ये कहता है। या आप उसको एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, उसका जो डोज है डेट इज 1 ग्राम पर वीक फॉर 2 weeks। एजिथ्रोमाइसिन भी आपको
उसको 2 हफ्ते के लिए देनी है, बट कंटिन्यूअस 2 वीक्स के लिए नहीं देनी होती है। एजिथ्रोमाइसिन में यू कैन गिव 3 days 500 मिलीग्राम ओडी 3 days, देन ब्रेक ऑफ 4 days एंड देन अगेन फॉर 3 days। प्लेसेंट्रेक्स का रोल आप it may have a role not proven, so Placentrex is also given intramuscularly on alternate day। जो आपके ओल्डर जनरेशन के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, they are very fond of this Placentrex, but we do not have much sufficient data to include this as the treatment modality, so you can add, you may avoid also। Now what thing you should not miss? If someone is coming with the PID, that means her partner is also probably infected, so partner की screening for the sexually transmitted disease has to be done। Why? This will, एक तो आपको STD identify होगी, second you will also avoid the recurrence because now she is more prone for developing PID again। अगर आपने उसके पार्टनर की ट्रीटमेंट मिस कर दी है, वहां आपने डायग्नोसिस मिस कर दिया है, देन उसको थोड़े समय बाद फिर से हो जाएगा एंड शी विल बी रिकरेंट PID। सो दिस इज अबाउट द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स दैट आर यूज्ड। नाउ वन थिंग, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जब हम इसमें करते हैं तो उसके क्या इंडिकेशन है? पहला इंडिकेशन, पेशेंट एडमिट है, उसका जो एब्डोमिनल एब्सेस है वो इट इज डायमेंशन इज मोर देन 10 सेंटीमीटर। इन दैट केस you will not only start with chemotherapy but you will also try to drain this abscess। दूसरा, abscess fails to respond to the treatment। हमने अभी देखा आफ्टर 48 to 72 आवर्स हम रीएसेस करते हैं, बट एब्सेस का साइज कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो हम उसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करेंगे। या आपकी जो छोटी सी भी अगर एब्सेस है वो उस ड्यूरेशन में रप्चर हो जाती है, तब हम उसको ओपन करेंगे, या उसमें ऑलरेडी जब वो एडमिट हुई है तब वो ऑलरेडी रप्चर्ड है या फिर ऑलरेडी पायोपेरिटोनियम उसका डेवलप हुआ है। अब उसमें क्या है, यू कैन डू लेप्रोस्कोपी और यू कैन डू कॉल्पोटोमी, डिपेंडिंग कि कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपके पास में लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी नहीं है तो लेप्रोटोमी इज द ऑप्शन एंड ड्रेनिंग। देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू पुट द ड्रेन, ड्रेन इज इम्पोर्टेंट, ड्रेन इसमें छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। एज अंडर ग्रेजुएट आपको पता होना चाहिए, जब आपको देखना है कि अंदर कितना कलेक्शन दोबारा बन रहा है तो उसके लिए हमें वहां पे ड्रेन हमेशा छोड़ना होता है। तो कुछ सर्जरीज में प्लेसिंग द ड्रेन इज इम्पोर्टेंट। और एक होता है परक्यूटेनियस एब्सेस ड्रेनेज, उसमें हम ओपन नहीं करेंगे बट केवल हम अल्ट्रासाउंड या MRI की गाइडेंस में परक्यूटेनियस एब्सेस ड्रेनेज करेंगे। उसके इट हैज टू बी डन इन हैंड्स, दोज आर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो आसपास के ऑर्गन है, ब्लैडर है, बाउल है, उनकी इंजरी के अदरवाइज चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ प्रोग्नोसिस। बोयर एंड मीजल सिस्टम जो है इट डिफाइंस द प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कैसे हमें प्रोग्नोसिस पता चलेगी? सबसे पहली बात तो एक्सटेंट ऑफ एडिशन कितना है, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एडिशन है उतना उसका पुअरर प्रोग्नोसिस है। फिर जो एडिशन है वो किस प्रकार के हैं, इफ दे आर फ्लिम्सी, हल्के हल्के से हैं तो ठीक है, उसका प्रोग्नोसिस उतना पुअर नहीं होता है, बट इफ दे आर डेंस एडिशन तो प्रोग्नोसिस इज बैड। नाउ साइज ऑफ हाइड्रोसल्फिन्स कितना है? अभी हमने देखा था जैसे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का है तो पुअरर आएगा क्योंकि हमें ऑपरेट करना पड़ता है, छोटा है तो इट हैज अ लेसर इम्प्लीकेशन। द मैक्रोस्कोपिक कंडीशन ऑफ हाइड्रोसल्फिन्स, अगर वो आपका कहीं अटैच नहीं है, उसमें कोई एडिशन नहीं है तो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अगर वो आपका पूरा सब तरफ से एडेरेंट है तो इट विल बी मोर प्रोग्नोस्टिकली पुअर। एंड थिकनेस ऑफ द ट्यूब वॉल। एंड रिजल्ट क्या होता है? Although PID, fortunately because of the chemotherapeutic antimicrobial chemotherapeutic agent, mortality due to PID is now far less. Only in neglected cases, जो कि आपके किसी मेडिकल केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक आते ही नहीं है, उसमें आपको जरूर मॉर्टेलिटी हो सकती है, अदरवाइज मॉर्टेलिटी इज वेरी निल, बट मॉर्बिडिटी इज वेरी हाई। लॉन्ग टर्म सिक्वेले इसमें क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है, देन इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी जिनमें होती है वो जब कंसीव करते हैं तो 8% केसेस दे हैव
ectopic. Infertility occurs in 15% cases. Chronic pelvic pain, it occurs in around 20 to 25% of the cases. तो आप ये देखिए कि कितना अच्छा बड़ा परसेंटेज है जिसमें ये लॉन्ग टर्म सिक्वेले इसमें पाए जाते हैं. प्रोफाइलैक्सिस कैसे करेंगे? इट इज वेरी इजी. इन्फेक्शन है तो आप जहां तक हो एसेप्टिक मेजर्स लीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए. सबसे पहला तो हॉस्पिटल डिलीवरी. आपकी जब हम हॉस्पिटल डिलीवरी होती है किसी महिला की तो वहां पे आपके सारे प्रिकॉशंस, सेप्टिक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं. तो जो और अगर ब्लड लॉस है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. अगर वहां पे कोई इंजरी है तो उसमें उसको एंटीबायोटिक इनिशियली ही स्टार्ट कर दी जाती है. उसको रिपेयर इजी हो जाता है. उसका कोई रिटेन प्रोडक्ट अगर है तो वो तभी के तभी उसको निकाल लिया जाता है. तो इस तरीके से जब वो हॉस्पिटल डिलीवरी अंडर हो रही है तो उसमें उसका जो चांसेस ऑफ डेवलपिंग पीआईडी इन केसेस ऑफ पोस्ट डिलीवरी वो आपके कम से कम होते हैं. जो अबॉर्शन होता है वो भी आपका सेफ अबॉर्शन होना चाहिए. इंड्यूस्ड अबॉर्शन अगर आप हो रहा है तो सेफ अबॉर्शन होना चाहिए. और जो कॉजेज हम हॉस्पिटल डिलीवरी की वजह से अवॉइड कर रहे हैं पीआईडी को, सेम अप्लाइज टू द सेफ एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन. उसमें वही है, अगर आपका रिटेन प्रोडक्ट रह जाएगा इट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड टेकन केयर ऑफ एंड ऑल द एसेप्टिक प्रिकॉशंस आर ऑलवेज फॉलोड. कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस फॉर कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन हमने पहले देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका बैरियर मेथड प्रिवेंट करता है. दूसरा जो आपकी मिनी पिल है क्योंकि वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है तो एसेंट को अवॉइड करती है. तीसरा अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है देन गो फॉर ट्यूबेक्टोमी, तो उससे भी आपका पीआईडी के चांसेस कम होते हैं. तो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट pelvic inflammatory disease. And this can be asked in your exam. You may be asked, especially for postgraduates, you may be asked which contraceptive method will give prevention against PID. और आप केवल एग्जाम्पल आंसर देंगे कि बैरियर मेथड और एंड यू आर फॉरगेटिंग दिस मिनी पिल एंड दिस ट्यूबेक्टोमी. तो एज ए पोस्ट ग्रेजुएट यू आर सपोज टू गिव ऑल द थ्री आंसर्स की. एक तो बैरियर मेथड अलॉन्ग विद मिनी पिल एंड ऑल्सो दिस ट्यूबेक्टोमी, इट ऑल्सो हैज गॉट अ रोल. देन सेक्स एजुकेशन, उसको आपको स्कूल में सेक्स एजुकेशन को अच्छे से शामिल करना चाहिए. यू शुड टेल द वुमेन अबाउट hygienic practices and about the use of this barrier method of contraception whenever required. This will not give protection against PID but other various STDs and also protection against this HIV, deadly HIV virus. Now female condom, which is called FemShield, is newer thing. It covers the whole of the perineum and avoids all contact or any kind of contact. So it has got a better advantage over male condom, so female condom, or it is also called FemShield. So एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में हम छोटा सा करेंगे. हमने पहले भी बताया आपको एक्टिनोमाइकोसिस, इफ यू आर सस्पेक्टिंग पीआईडी इन अ वुमेन जिसमें कॉपर टी ऑलरेडी लगी हुई है, नेवर फॉरगेट दिस एक्टिनोमाइकोसिस. इसका कल्चर वगैरह डिफिकल्ट है. ऑन एग्जामिनेशन, ऑन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपको येलो येलो सर्फल ग्रेन्यूल जैसे नजर आएंगे सर्विक्स में से निकलते हुए. डेड श्योर यू आर, बेटर यू send them for microscopic examination and then you have to start the long term chemotherapy. इसमें लंबी चलती है. I have already told you it continues for up to 3 to 12 months together. So this is all about pelvic inflammatory disease. I have tried to cover all the topic in detail. इसमें से आपको अगर कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, हम आपको रिस्पॉन्ड देंगे. कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप पहले वीडियो चाहते हो आप उसका भी सजेशन दे सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें. और अगर आपको पसंद है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू.